Good morning. Good Good morning, sir. morning, sir. Good morning. Um, okay, so mm, okay, we are supposed to start with the thoracic spine, ना? हमने हमने cervical तक बात कर ली थी, and we just talked about the structure. First of all, the structure of the cervical vertebrae, है ना? The C1, C2 typically, and then the rest of the cervical vertebrae, and then we talked about the kinematics, like how C1, C2, what is the function that C1, C2 performs, है ना? उसके बाद C0, C1 क्या function perform कर रहा था? Can anyone tell me? C0, C1 का major function क्या था? Was it flexion extension or was it rotation of the neck? C0, C1. Rotation. C0, C1. No, Flex and extension. हाँ फ्लेक्शन एक्सटेंशन ना एंड हमने इसकी भी बात करी थी विथ फ्लेक्शन जो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स है इट ट्रांसलेट्स एंटीरियरली और पोस्टीरियरली विथ नेक फ्लेक्शन Posterior. translates posteriorly exactly because the occipital condyles are convex in shape and the superior facet of C1R is concave in shape है ना ओके ये हमें पता था उसके अलावा हमने फिर C1 C2 की बात करी जहाँ पे C2 जो है वो एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है और यू कैन से डेंस एंड देन इट प्रोवाइड्स द रोटेशन मोमेंट ठीक है सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द थोरेसिक तो आज थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है वी विल जस्ट कवर सिंपली द थोरेसिक एंड लंबर का स्ट्रक्चर ठीक है ये भी हमने कल डिस्कस किया था थोड़ा बहुत उसको हम प्रॉपर्ली एक बार डिस्कस कर लेंगे कि हाउ स्ट्रक्चर्स मूव एंड देन उसके बाद लंबर का स्ट्रक्चर आ जाएंगे उसके बाद दिस थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट दिस थिंग lumbar pelvic rhythm and the movements of the pelvis as well as movements of the sacrum ठीक है where we will talk about the nutation and the counter nutation okay so let's start it from here just a second I hope my voice is clear to everyone and screen सबको visible है Yes, sir. ओके ग्रेट ठीक है देखो अब इसमें ये चीज़ है कि हमने इस चीज़ की तो बात करी थी मैक्सिमम चीज़ों की कि द स्ट्रक्चर ऑफ द thoracic vertebrae and all those things and if we talk about the articular facets तो इनका facet कौन से प्लेन के along था thoracic vertebrae में Along the frontal plane. हाँ along the frontal plane or you can say just almost 20 degree of the frontal plane almost you can say है ना and because of that we saw the major movement in the thoracic spine it was Lateral it was flexion. lateral flexion है ना and we know that lateral flexion is combined with axial rotation as well तो it was lateral flexion and axial rotation lateral flexion and axial rotation हमेशा हमारी coupled movements होती है एंड ओके दिस थिंग वी नो दैट डेमी फेसेट्स हमारे प्रेजेंट होते हैं आई थिंक इसमें तो कोई हमें इशू नहीं है इसमें भी कोई इशू नहीं है ना कि डेमी फेसेट्स का क्या फंक्शन होता है वी नो दैट एक पर्टिकुलर वर्टिब्रा का इन्फीरियर आर्टिकुलर फेसेट के साथ में उसका कॉरस्पॉन्डिंग ग्रिप का सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट अटैच करता है एंड देन ऑल्सो वी नो दैट वी हैव गॉट अ कॉस्टो ट्यूबरकुलर फेसेट जिसके साथ में कॉस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट बनता है ना तो दैट वी हैव गॉट द कॉस्टो वर्टिब्रल एंड देन द कॉस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट एंड इवेंचुअली वो आगे जाके हमारा स्टर्नम के साथ में जैसे हम देखते हैं वैसे उसका अटैचमेंट होता है ओके देन वी कैन सी दैट thoracic spine has got more stability and less flexibility than the cervical spine and even less flexibility than the lumbar spine as well because again we know that we can talk about the ratio between the endovertebral disc and the height of the vertebral body and the ratio is you can say less than the lumbar spine ka ratio na or you can say cervical spine ka that's why okay now talking about the kinematics it is same that we can see that we have got lateral flexion and axial rotation as the predominant motion now the thing is that ये भी हमने कल डिस्कस किया था that if we talk about the upper thoracic vertebrae and the lower thoracic vertebrae तो we can divide it into like let's say हम upper six की बात कर रहे हैं thoracic vertebrae and then we are talking about the lower six thoracic vertebrae सॉरी तो इस तरह से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो इन दैट केस अगेन वी कैन सी कि lateral flexion is coupled with rotation of the vertebra in the same direction दोनों जो हो रहा है एक्सियल रोटेशन एंड लैटरल फ्लेक्शन बोथ आर हैपनिंग इन द सेम डायरेक्शन इन अपर थोरैसिक वर्टिब्रे इट मीन्स इसके ऊपर हमने क्या पढ़ा था लोअर सर्वाइकल वी सॉ दैट लोअर सर्वाइकल एंड अपर थोरैसिक हैड
similar type of movement when it comes to lateral flexion and axial rotation. It means lateral flexion and axial rotation both happen in the same direction when it comes to lower cervical or and you can say upper thoracic. एंड दूसरा केस अगर हम बात करें अपर सर्वाइकल एंड लोअर थोरेसिक की बात करें, आई होप सबको चीज़ समझ आ रही है. लोअर थोरेसिक आई मीन टू से लोअर वर्टिब्रे ऑफ द थोरेसिक स्पाइन एंड अपर सर्वाइकल मीन्स अपर यू कैन से अपर C1 C2 C3 के बारे में हम बात कर सकते हैं विच कंट्रीब्यूट टू द अपर सर्वाइकल वर्टिब्रे. तो आई एम जस्ट सेइंग दैट अपर सर्वाइकल वर्टिब्रे एंड लोअर थोरेसिक वर्टिब्रे एज अ होल दोनों का जो मूवमेंट है, मतलब मूवमेंट इन द सेंस लैटरल फ्लेक्शन एंड एक्सियल रोटेशन दोनों सिमिलर है. तो इट मीन्स यहाँ पे अगर हम देखते हैं लोअर थोरेसिक एंड अपर सर्वाइकल में, वी कैन सी दैट लैटरल फ्लेक्शन and अगर if it is in a particular direction, the lateral flexion is in a particular direction, let's say अगर हम right side की तरफ lateral flexion करते हैं, in that case we see axial rotation उसका will be in the contralateral side, will be towards the left side. So that is a typical type of movement that we come across when we talk about lower thoracic and upper cervical vertebrae. And on the contrary, lower cervical and upper thoracic का similar function होता है. That means same direction में lateral flexion and axial rotation. I hope everyone gets this. Just let me know. Yes, sir. Okay. ठीक है, तो just remember lower cervical and upper thoracic आपको याद है, तो simply you can come up with upper cervical and lower thoracic है ना, वो that simply you can come up. Along with that, we can see that lateral flexion and axial rotation, of course, they will be limited by the rib cage, है ना. Some disturbance. Sorry. There is some disturbance. There is disturbance. Just give me a second. Yes. Okay. I hope it's better now. Yes, sir. Okay. Is it visible? हाँ, okay, ठीक है. हाँ, ठीक है. तो यहाँ पे तो we talked about a particular type of this thing, and along with that, yesterday only we discussed this thing that if we talk about a typical movement, अगर हम typical movement of thoracic spine की बात करते हैं, तो in that case we need to look at the upper segment of the thoracic spine. I mean to say, अगर हम typical type of axial lateral flexion and axial rotation की अगर हम बात करना चाह रहे हैं, in that case we need to have a look at the upper segment of the thoracic spine. Why? Because we see that that you can say that is the major function, and उसके बाद जब हम lower segment of thoracic spine पे आ जाते हैं, then we see that we get to know, मतलब we get to see a different type of movement. अगर हम coupling की बात कर रहे हैं, that in the lower thoracic spine we see that if we lateral bend towards one side, there is axial rotation towards other side. लेकिन typical type of अगर lateral flexion and axial rotation coupling की अगर हमें बात करनी है, in that case we need to have a look at the upper segment of the thoracic spine. Also we can see that most of the typical ribs you will find mostly in the upper segment. So now the thing is that if we talk about the movement of the ribs, the typical type of movement of the ribs, so in that case more or less we are having a look at the upper segment of the ribs, जहाँ पे वो और वी कैन से ट्रू रिब्स है ना, जो कि कंप्लीटली पोस्टीरियरली हमारा वर्टिब्रे के साथ में एंड एंटीरियरली विच आर अटैच्ड टू द स्टर्नम. तो इफ वी हैव अ लुक at a typical movement of the true ribs, in that case we can see this. In that case we can see this, that let's say this person is doing left side lateral bending है ना, this is the right side, this is the left side. तो if this person is performing left side lateral bending, left side की तरफ ये person lateral bend कर रहा है, तो in that case we can see ना, because we can see that यहाँ पे हमने देखा कि lateral flexion is coupled with rotation of the vertebra in the same direction in upper thoracic vertebrae. It means when this person lateral flexes towards or laterally bends towards left side, in that case जो vertebra है, vertebra is also supposed to axially rotate towards the same direction. And हमने ये बात करी थी, when we talk about the axial rotation of vertebra, we are supposed to look at कौन से पार्ट की तरफ हम देखेंगे vertebra के. It is the vertebral body ना, vertebral body की तरफ हम देखेंगे, and we will see that if the vertebral body moves towards left side, in that case we can say that this particular vertebra goes into left side axial rotation. Okay,
ठीक है. It is the vertebral body that we need to look at, and then we can easily say. अगर आप spinous process देख के बताओगे तो ये उल्टा हो जाएगा. ठीक है, तो just have a look at the vertebral body, and then we can easily say that if the vertebral body moves towards axially rotates towards left side, in that case we can say that this is left side axial rotation of this particular vertebra. It means we can easily say that this person laterally bends towards left side, and because of that we can see this type of this particular vertebra which rotates towards the same side, towards the left side, and because of that we can see कि हमारा जो rib है, rib will show a particular type of, you can say, deformation, or you can say change in its shape. यहाँ तक just let me know सबको समझ आ रहा है कि नहीं. I hope I am audible to everyone. सर वो स्पाइनस प्रोसेस से लिंक बोला ना, वो नहीं अंडरस्टैंड हुआ. ओके, ठीक है. देखो मैं ये बोल रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ पे ये जो ऑरेंज कलर में दिखाया गया है, ये वाला हमारा सुपीरियर वर्टिब्रा है. ठीक है, एंड ये वाला जो ट्रांसपेरेंट वाला है, दैट इज द इंफीरियर वर्टिब्रा. ठीक है, तो राइट नाउ वी आर सपोज टू टॉक अबाउट द मूवमेंट ऑफ द सुपीरियर वर्टिब्रा विथ रिस्पेक्ट टू द इंफीरियर वन. नाउ इतना हमें समझ आ गया कि lateral flex and axial rotation will be in the same direction when we talk about the typical ribs, or you can say true ribs के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर हम upper ribs की बात कर रहे हैं जिनका proper हमारा vertebra and sternum के साथ में attachment है. यहाँ तक हमें समझ आ गया that lateral flexion and axial rotation of the vertebra will be in the same direction. यहाँ तक हमें clear है ना? Yes, sir. ठीक है, so it means easily we can say that if we are saying that this particular vertebra axially rotates, इस vertebra का axial rotation हो रहा है ना, it rotates towards the left side. हम कैसे बोल पा रहे हैं कि ये rotation towards left side हो रहा है? Because simply जब भी आपको बोला जाता है कि कोई vertebra किस direction में rotate कर रहा है, just have a look at its vertebral body. बाकी और किसी स्ट्रक्चर की तरफ मत देखना. अगर आप स्पाइनस प्रोसेस की तरफ देखते हो, लेट्स से ट्रांसवर्स, तो उस केस में कन्फ्यूजन का चांस है ना, बिकॉज हम बोल रहे हैं कि ये वर्टिब्रा लेफ्ट साइड एक्सियल रोटेशन में जा रहा है, लेकिन स्पाइनस प्रोसेस इज मूविंग टुवर्ड्स राइट साइड, तो दैट माइट बी कंफ्यूजिंग. दैट्स वाई मैंने ये चीज़ बोली कि जस्ट कीप इन माइंड द वर्टिब्रल बॉडी, एंड वर्टिब्रल बॉडी का जिस तरफ मूवमेंट होता है उस तरफ वी कैन ईजिली से दैट देयर इज एक्सियल रोटेशन ऑफ दैट वर्टिब्रा टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर साइड. तो इस केस में अगर हम इस वाले वर्टिब्रा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इसका वर्टिब्रल बॉडी जो है किस तरफ मूव होता हुआ हमें दिख रहा है, टुवर्ड्स राइट साइड और टुवर्ड्स लेफ्ट साइड. वर्टिब्रल बॉडी ये वाला जो है ये किस तरफ मूव किया है? लेफ्ट साइड की तरफ मूव किया है ना. आई होप एवरीवन गेट्स दिस. मैं कंटिन्यूसली बोले जा रहा हूँ, बट आई जस्ट वांट टू आस्क कि सबको चीज़ समझ आ रही है कि वर्टिब्रल बॉडी हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड की तरफ घूमती हुई दिख रही है ना. तो दैट्स वाई तभी तो हम इस पर्टिकुलर वर्टिब्रा का लेफ्ट साइड एक्सियल रोटेशन बोल रहे हैं. ठीक है, एंड लेफ्ट साइड एक्सियल रोटेशन अगर इस वर्टिब्रा का हो रहा है, इट मीन्स फॉर श्योर ये पर्सन जो है लेफ्ट साइड लैटरल बेंडिंग कर रहा होगा, लेफ्ट साइड लैटरल ट्रंक लीन कर रहा होगा. बिकॉज वी नो कि अगर हम ट्रू रिब्स की बात करते हैं तो इन दैट केस वी कैन से दैट अपर सेगमेंट की हम बात करना चाह रहे हैं, एंड इन दैट केस वी कैन से दैट लैटरल फ्लेक्शन एंड एक्सियल रोटेशन विल बी इन द सेम डायरेक्शन. दैट्स वाई जस्ट लेट मी नो यहाँ तक हमें समझ आया कि नहीं, कि क्यों ये वर्टिब्रा हमें लेफ्ट साइड की तरफ घूमता हुआ दिख रहा है. क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. ओके, ग्रेट. सो नाउ वी कैन सी ऑफ कोर्स कि अगर हमारा वर्टिब्रा जो है, दिस वी नो दैट अ पर्टिकुलर वर्टिब्रा हैज़ अ कॉस्टो वर्टिब्रल जॉइंट एज वेल एज कॉस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट, है ना. कॉस्टो वर्टिब्रल जॉइंट बनेगा एंड देन कॉस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट. ट्रांसवर्स प्रोसेस से टच होता हुआ जाता है ना, फिर देन उसके बाद रिब आगे जाएगा. तो ऑफकोर्स अगर विथ लैटरल बेंडिंग अगर हमारा जो एक पर्टिकुलर वर्टिब्रा अगर एक टाइप का अगर हमें एक्सियल रोटेशन करता हुआ मिल रहा है, तो फॉर श्योर उसकी वजह से हमारे जो रिब्स है, रिब्स में भी तो हमें डिफॉर्मेशन देखने को मिल सकती है ना. डिफॉर्मेशन इन द सेंस, नॉट इन द सेंस ऑफ डिजीज़, मैं किसी कंडीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नॉर्मल फंक्शनिंग की बात कर रहा हूँ उसका, कि जब हम लैटरल फ्लेक्स करेंगे उस केस में देयर विल बी एक्सियल रोटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्टिब्रा टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन. अगर ये पर्सन लेफ्ट साइड लैटरल फ्लेक्स कर रहा है, इन दैट केस वी कैन सी दैट द वर्टिब्रा मूव्स एक्सियली रोटेट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, एंड बिकॉज ऑफ दैट नाउ वी कैन सी अगर ये वर्टिब्रा लेफ्ट साइड एक्सियल रोटेशन शो कर रहा है, इन दैट केस फॉर श्योर इसका जो लेफ्ट ट्रांसवर्स प्रोसेस जो कि यहाँ पे था ये पोस्टीरियरली मूव कर गया, राइट ट्रांसवर्स प्रोसेस जो यहाँ पे था वो एंटीरियरली मूव कर जाएगा,
एंड स्पाइनस प्रोसेस जो कि पोस्टीरियरली था वो थोड़ा सा राइट साइड की तरफ मूव कर जाएगा. आई थिंक दिस इज सिंपल ना. तो बिकॉज ऑफ डैट अगर हमें हमारा जो वर्टिब्रा है वो लेफ्ट साइड एक्सियल रोटेशन शो कर रहा है, तो बिकॉज ऑफ डैट फॉर श्योर हमारा जो लेफ्ट साइड यू कैन से पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लेफ्ट रिब जो है इट इज सपोज टू मूव पोस्टीरियरली ना, एंड इसका अपोजिट जो राइट साइड का जो हमें रिब देखने को मिलेगा पोस्टीरियर साइड पे, दैट इज सपोज टू मूव अ बिट एंटीरियरली. दिस इज बिकॉज हमारा जो रिब है, रिब का अटैचमेंट इस तरह से होता है विद द वर्टिब्रा दैट इट हैज गॉट अ कॉस्ट टू वर्टिब्रल एज वेल एज कॉस्ट टू ट्रांसवर्स जॉइंट. तो इट इज सपोज टू मूव पोस्टीरियरली ना, बिकॉज लेफ्ट ट्रांसवर्स प्रोसेस एज अ होल पोस्टीरियरली मूव कर रहा है, बिकॉज जो वर्टिब्रा है वर्टिब्रा हमारा लेफ्ट साइड एक्सियल रोटेशन शो कर रहा है. व्हाई? बिकॉज दिस पर्सन लैटरली बेंड्स टुवर्ड्स लेफ्ट साइड. यहां तक मेरे को बताओ, यहां तक कोई डाउट? No, sir. Clear? So it means you can easily say that when a person laterally bends towards a particular side, and if they ask you कि एक rib का किस तरह से हमें change in shape देखने को मिल सकता है, you can easily say that on the side towards the side जिस तरफ इस person ने lateral trunk lean किया है, on that side we will see that अगर हम rib की बात करते हैं on the posterior side it will become more convex, right? एंड ऑन द कॉन्ट्रालेटरल साइड जिस लेफ्ट साइड की तरफ ये पर्सन ट्रंक लीन कर रहा है, एंड ऑन द कॉन्ट्रालेटरल साइड ऑन द राइट साइड वी विल सी पॉजिटिवली द रिब विल बिकम मोर यू कैन से फ्लैटेंड. रिब ज़्यादा फ्लैटेंड देखने को मिलेगा, एंड जिस तरफ पर्सन लैटरल ट्रंक लीन कर रहा है उस साइड पे रिब हमें ज़्यादा कॉन्वेक्स होता हुआ मिल जाएगा. दिस इज बिकॉज वी विल सी कि रिब जो है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ, बिकॉज स्पाइनस प्रोसेस हमारा एज अ होल पीछे की तरफ मूव कर गया, तो ऑफकोर्स यहाँ पे रिब का डिस्टॉर्शन हमें थोड़ा देखने को मिलेगा, एंड बिकॉज ऑफ डैट रिब जो है पोस्टीरियरली इट विल बिकम मोर कॉन्वेक्स टुवर्ड्स द साइड, posteriorly on the side या जिस side की तरफ this person laterally bends, and on the contralateral side on the posterior aspect of the rib we will see that the rib becomes more flattened. यहाँ तक क्लियर है? मेरा बस ये बताने का मकसद है, इसलिए मैंने ये सारा क्योंकि हमें ये समझना जरूरी है कि देयर इज एक्सियल रोटेशन ऑफ अ वर्टिब्रा, बिकॉज ऑफ दैट वी विल सी कि हमारे रिब में किस तरह से उसके शेप में चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे. आगे बढ़ूँ मैं? ओके. एंड इसकी वजह से ही हम आगे अभी बात करेंगे स्कॉलियोसिस की. तो स्कॉलियोसिस में भी हमें ये देखने को मिलेगा ना, स्कॉलियोसिस में भी अगेन सी कि स्कॉलियोसिस में हमें एक पर्टिकुलर टाइप का एक्सियल रोटेशन देखने को मिलता है. जैसे इसी के साथ में अगर हम कंपेयर करते हैं स्कॉलियोसिस को, तो व्हाट वी कैन सी कि देखो हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में भी उसमें हमने कंपेयर किया था कि लैटरल बेंडिंग एंड स्कॉलियोसिस. तो एक तो कंडीशन है जहाँ पे ये पर्सन लेफ्ट साइड लैटरल ट्रंक लीन या लेफ्ट साइड बेंडिंग कर रहा है, जिस केस में जो वर्टिब्रा है सुपीरियर वर्टिब्रा का सेम डायरेक्शन में एक्सियल रोटेशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द इंफीरियर वर्टिब्रा, है ना. सेम डायरेक्शन की तरफ इसका एक्सियल रोटेशन हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम इसी को अगर हम लेट्स से स्कॉलियोसिस से अगर हम कंपेयर करते हैं, तो स्कॉलियोसिस में हम इसका नियरेस्ट क्या कंपेयर कर सकते हैं, दैट देयर इज अ राइट साइडेड स्कॉलियोसिस जिसमें स्कॉलियोसिस राइट साइड कॉन्वेक्सिटी है, लेफ्ट साइड कॉन्केविटी है. आई होप सबको समझ आ रहा है. मैं इसी से मतलब ये वाला जो है ये नॉर्मल ट्रंक लीन है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, जहाँ पे हमने देखने को मिला कि जो वर्टिब्रा है वो सेम डायरेक्शन की तरफ रोटेट किया. अब मैं बात करना चाह रहा हूँ स्कॉलियोसिस की. स्कॉलियोसिस कौन सा? राइट साइड स्कॉलियोसिस, इसमें राइट साइड कॉन्वेक्सिटी होगी एंड लेफ्ट साइड कॉन्केविटी होगी. सबको समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है. इन दैट केस वी विल सी, इन दैट केस in case of scoliosis we will see that जिस side convexity होती है the vertebra tends to rotate towards the same side, or you can say the vertebra tends to rotate towards the side of scoliosis or towards the side of convexity. let's say अगर यही कंडीशन अगर होती, मतलब let's say ये अगर हमारा राइट साइड स्कॉलियोसिस होता, तो इन दैट केस ये मतलब ये जो सुपीरियर वर्टिब्रा है ये लेफ्ट साइड की तरफ रोटेट होने के बजाय राइट साइड की तरफ रोटेट किया होता, सॉरी राइट साइड की तरफ रोटेट किया होता. ठीक है, ये हमें कहीं यहाँ देखने को मिलेगा. हाँ देखो, ये देखो यहाँ दिस इज द कंडीशन स्कॉलियोसिस में. देखो यहाँ पे अगेन सेम चीज़ हम देखना चाह रहे हैं कि देखो यहाँ पे हमें राइट साइड स्कॉलियोसिस ये वाले कंडीशन है. दिस इज द राइट साइड, दिस इज द लेफ्ट साइड. राइट साइड स्कॉलियोसिस है, तो इन दिस केस what we'll see that the vertebra it rotates towards the side of convexity or towards the side of
स्कॉलियोसिस, एंड बिकॉज ऑफ दैट अब हमें अलग टाइप का डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा इन द रिब्स, है ना, दैट सिंस नाउ द वर्टिब्रल बॉडी हैज रोटेटेड टुवर्ड्स द साइड ऑफ स्कॉलियोसिस और टुवर्ड्स द साइड ऑफ कन्वेक्सिटी, अब हम देख सकते हैं कि राइट ट्रांसवर्स प्रोसेस जो था वो दैट विल कम अ बिट पोस्टीरियरली, है ना, यहाँ पे कहीं आ गया। स्पाइनस प्रोसेस भी थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ मूव कर गया, एंड एज अ होल लेफ्ट ट्रांसवर्स प्रोसेस जो यहाँ था थोड़ा सा और डीपर चला गया। नाउ बिकॉज ऑफ दैट वी कैन सी ऑन द साइड ऑफ, दिस इज द साइड ऑफ कनकेविटी, दिस इज द साइड ऑफ कन्वेक्सिटी, बिकॉज स्कॉलियोसिस हमारे राइट साइड की तरफ हम बात कर रहे हैं ना, तो इस केस में posterior part of rib की अगर हम बात करें on the side of concavity, we will see it will move a bit anteriorly, and जिस साइड पे scoliosis है उस साइड की अगर हम rib की बात कर रहे हैं तो on that particular side we will see posteriorly the rib will move a bit it will move a bit posteriorly ना, because now we see that transverse process जो है it has moved posteriorly because there is as a whole there has been an axial rotation of the vertebra towards the side of scoliosis. सबको ये चीज समझ आई, there is a difference between this and this. Just let me know, कोई confusion है यहाँ तक? इसको मैं एक बार फिर से एक बार समापक कर लूँ। सब सुन रहे हैं, सबको समझ आ रहा है? पहले ये बताओ मेरे को। रामे आप सुन रहे हो, बाकी सब ओके ठीक है। Yes, sir. इज दिस इंटरेस्टिंग है कि नहीं? या यू कैन टेल मी। ओके आई होप दिस बिकम्स इंटरेस्टिंग। मैं इसको जितना ट्राई कर रहा हूँ, जितना हो सके इंटरेस्टिंग उतना बने, एंड आई थिंक दिस इज इंटरेस्टिंग। ओके सो इसको मैं फिर से एक बार रिकैप करता हूँ। एक मैं बात कर रहा हूँ अबाउट बायोमैकेनिक्स, नॉर्मल मैकेनिक्स ऑफ द बॉडी, एंड दूसरी तरफ आई एम टॉकिंग अबाउट पैथोमैकेनिक्स, और यू कैन से abnormal functioning of the body. तो this is abnormal functioning of the body and this is the normal functioning of the body. दोनों केस में हम देख रहे हैं कि वर्टिबल कॉलम का लेफ्ट साइड कनकेविटी हो रहा है, राइट साइड पे कॉन्वेक्सिटी हो रहा है, इस केस में भी एंड इस केस में भी। बट डिफरेंस क्या है, दैट इस केस में हम नॉर्मल फंक्शनिंग की बात कर रहे हैं, बिकॉज इस नॉर्मली ये पर्सन जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ हमारा लैटरल फ्लेक्स कर रहा है, बिकॉज ऑफ दैट देर इज नाउ लेफ्ट साइड कनकेविटी एंड राइट साइड कन्वेक्सिटी, जो हम लोग नॉर्मली कर सकते हैं, हम लोगों में ये चीज़ देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे हम कंडीशन की बात कर रहे हैं जहाँ पे राइट साइड स्कॉलियोसिस है, और यू कैन से अगेन देर इज कनकेविटी ऑन द लेफ्ट साइड एंड कन्वेक्सिटी ऑन द राइट साइड, बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंडीशन, एंड यहाँ पे हम कंडीशन की बात नहीं कर रहे थे, यहाँ पे हम नॉर्मल फंक्शनिंग की बात कर रहे हैं। तो in this case we will see, in the normal functioning we will see, when we laterally lean the trunk towards a particular side, towards the left side let's say, so in that case the vertebra rotates towards the towards the direction of the concavity, है ना, और towards the direction जिस तरफ हमने lateral trunk lean किया है, and because of that we will see certain type of changes in the vertebra, that it becomes more convex posteriorly on the side जिस तरफ हमने lateral trunk lean किया है, and it becomes more flat on the contralateral side. But if we talk about a condition like scoliosis, in this case we will see again there is convexity on the right side, concavity on the left side, but here what we will see that the axial rotation of the vertebra will be towards the side of scoliosis, or you can say towards the side of convexity. And now because of that we will see on the side of scoliosis posteriorly the rib, you can say the dorsal aspect of the rib will move more posteriorly, है ना, and here we will see on the side of concavity it will move a bit more anteriorly. And because of that अगर हम इस पर्सन में रिब हम्प की बात करना चाहेंगे, रिब हम्प, तो हमें किस साइड पे, अगर हम इस पर्सन को क्लोथिंग रिमूव करके अगर हम पोस्टीरियर एस्पेक्ट से अगर हम देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो इन दैट केस हमें दोनों में से किस साइड पे रिब ज़्यादा प्रोमिनेंट देखने को मिलेगी, राइट साइड और लेफ्ट साइड? राइट साइड, है ना। तो इट मीन्स एक तो हमें राइट साइड पे ज़्यादा, तो इट मीन्स इजीली वी कैन फिगर आउट कि राइट साइड पे ज़्यादा प्रोमिनेंट रिब्स है, एंड वी कैन इजीली से दैट देयर मस्ट बी अ राइट साइड स्कॉलियोसिस, एंड ठीक है, एंड उसकी वजह से अब यहाँ पे हम एक चीज़ और की बात कर सकते हैं। इफ़ वी कंपेयर द एज अ होल यू कैन से वॉल्यूम किसका, हमारा रिब केज का, मतलब एक राइट साइड का रिब केज की हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, एंड लेफ्ट साइड के रिब केज की वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। ओके, नाउ वी कैन सी ऑन द लेफ्ट साइड, तो ये तो एंटीरियरली मूव किया, तो यहाँ पे एज अ होल मतलब ऑन द साइड ऑफ कॉन्केविटी, अगर हम स्कॉलियोसिस के कॉन्केविटी वाले साइड की बात कर रहे हैं, तो उस साइड पे हम देखते हैं कि एज अ होल द वॉल्यूम मस्ट डिक्रीज, बिकॉज
रिब जो है वो एंटीरियरली मूव किया, या फिर इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि ऑन द साइड ऑफ स्कॉलियोसिस, ऑन द स्कॉलियोटिक साइड, और यू कैन से ऑन द साइड ऑफ कॉन्वेक्सिटी, यू कैन से दैट एडिशनल हमें स्पेस या वॉल्यूम देखने को मिले ना, बिकॉज नॉर्मली हमारा रिब यहाँ प्रेजेंट था, बट वी कैन सी इट हैज़ मूव्ड much more posteriorly because of the axial rotation of the vertebra, and because of that we can see that now हम हमारे पास अब additional एक volume मिल गया है. Simply we can say that on the side of convexity or on the side of scoliosis, on the scoliotic side, if we talk about the volume of the rib cage, we will see that it will increase on the side of scoliosis, and on the contrary, on the concavity side, on the side of concavity, or you can say on the side contralateral to the scoliotic side, है ना, इस साइड पे हम देखेंगे एज अ होल जो वॉल्यूम है दैट विल डिक्रीज. सिंपल, ठीक है. ऑन द स्कॉलियोटिक साइड we will see the volume will increase, and on the side of concavity we will see this the as a whole the volume will decrease. यहाँ तक clear? Yes, sir. ठीक है. ओके, तो हमने ये चीज़ अच्छा करेगा, हमने दोनों को एक साथ कंपेयर कर लिया so that it becomes easier for us to understand. ठीक है, this is the normal functioning, this is the abnormal functioning. Okay, इसके बाद में now we can simply talk about there is one more thing, that is the line of gravity. Okay, तो line of gravity की अगर हम बात करना चाह रहे हैं तो we can see that as a whole we know that line of gravity is the line that passes through the center of gravity, and we can assume a particular line through which the whole, you can say, force, gravitational force the body जिसके through pass कर रहा है. तो now what we can see that if we have a look at the line of gravity in comparison with the thoracic spine, so we can say that it moves. Can anyone tell me it falls anteriorly or posteriorly? Anterior to the thoracic spine or the posterior to the thoracic spine? Anterior to the thoracic spine. हाँ, it falls anterior. तो now what we can see that अगर ये anteriorly fall कर रहा है तो in that case because of line of gravity इसकी टेंडेंसी हमारी thoracic kyphosis पे क्या होगी? Kyphosis इंक्रीज करने की कि kyphosis डिक्रीज करने की? Kyphosis increase करने की टेंडेंसी होता है. हाँ, एग्जैक्टली, है ना. मतलब हम यहाँ पे हम देख सकते हैं, एक सेकेंड, लाइन ऑफ ग्रेविटी एंड thoracic kyphosis, है ना. देखो आई होप कोई इमेज मिले हमें. हाँ, देखो यहाँ पे ये चीज़ दिखाना, हाँ ये है. here we can see this is the line of gravity, and here we can see this is the kyphosis. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लाइन ऑफ ग्रेविटी जहाँ पे फॉल कर रहा है, line of gravity has this tendency to pull, you can say, different structures, या फिर हम कह सकते हैं कि as a whole हमारे बॉडी की टेंडेंसी रहती है कि it tries to move towards the center of gravity, or you can say towards the line of gravity, है ना. एंड अब अगर हम ओल्ड इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, व्हाट वी सी कि उनका स्टूप पोजीशन जो होता है, या फिर हम कह सकते हैं काइफोसिस जो है, वो काइफोसिस हमें इंक्रीज देखने को मिलता है ना ओल्ड इंडिविजुअल्स में. The reason for that is because we know that the line of gravity falls anterior to the kyphosis, and young individuals में, हम लोग में तो चलो ठीक है, हमारे पास बैक एक्सटेंसर्स है, हमारे पास इलियोकोस्टालिस, लॉन्गिसिमस, स्पाइनलिस एंड ऑल दोस मसल्स हमारे पास प्रेजेंट है, एंड we can say that those are the muscles जब जो कि posture maintain करने में help कर रहे हैं, when we are in the standing position, those are called as anti gravity muscles. अभी हम उस पर आएंगे बाद में, लेकिन हम कह सकते हैं कि those are called as anti gravity muscles, और you can say those are the muscles जो कि हमारा posture maintain करने में help कर रहे हैं. और you can say when the person is in the standing position, those are the muscles I'm talking about, the back extensor muscles, जो कि हमारा contracted state में है for a continuous period of time, and because of that जो कि हमारा काइफोसिस जो है वो मेंटेन करने में हेल्प कर रहे हैं. लेट्स से हमारी बैक एक्सटेंसर्स अगर वीक हो जाती है, तो इन दैट केस वी विल सी फॉर श्योर हमारे जो काइफोसिस है, काइफोटिक कर्वेचर जो है, दैट शुड इंक्रीज. बिकॉज इंक्रीज क्यों हो रहा है? बिकॉज लाइन ऑफ ग्रेविटी हमारे एंटीरियरली फॉल करती है ना. इसके अगर लाइन ऑफ ग्रेविटी हमारा काइफोसिस के पोस्टीरियरली, मतलब थोरेसिक काइफोसिस के पोस्टीरियरली फॉल करती होती, तो उस केस में कोई इशू नहीं था. उस केस में तो नॉर्मली हमारे बिकॉज ऑफ लाइन ऑफ ग्रेविटी हमारा थोरेसिक काइफोसिस जो है वो हमारा मेंटेन रहता. लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं काइफोटिक कर्वेचर और इंक्रीज करना चाह रहा है बिकॉज लाइन ऑफ ग्रेविटी फॉल्स एंटीरियर टू दिस, है ना. तो दैट इज द रीजन कि हम ओल्ड इंडिविजुअल्स में देखते हैं कि दैट दे हैव दिस स्टूप पोस्चर, एंड वी सी दैट
उनके केसेस में जो काइफोटिक जो कर्वेचर है दैट इज मच मोर, बिकॉज उनके जो एंटी ग्रेविटी मसल्स है और यू कैन से जो बैक एक्सटेंसर मसल्स जो है वो वीकनेस में आ चुके हैं एज कम्पेयर टू यंग इंडिविजुअल्स. आई होप एवरीवन गॉट दिस. Yes, sir. ओके, अब हम Yes, sir. ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर इफ आई आस्क यू कि सारे के सारे काइफोटिक थोरैसिक वर्टिब्रे में से कौन से थोरैसिक वर्टिब्रे के ऊपर मैक्सिमम यू कैन से टॉर्क लग रहा होगा फॉर इंक्रीजिंग द काइफोटिक कर्वेचर? डोंट यू थिंक कि इट शुड बी समवट हेयर? मतलब अगर हम यहाँ पे हमें मूवमेंट आर्म की बात करनी है ना, मूवमेंट आर्म की हमें बात करनी है इन द सेंस कि अगर देखो मूवमेंट आर्म मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके बीच में, एक तो हमारा जिसके अराउंड मूवमेंट हो रहा है एंड जो मूवमेंट करवा रहा है. मूवमेंट यहाँ पे करवा कौन रहा है, मतलब मूवमेंट की मैं बात करना चाह रहा हूँ मीन्स हमारा काइफोटिक कर्वेचर को इंक्रीज कौन कर रहा है, दैट इज द लाइन ऑफ ग्रेविटी. एंड किसके अराउंड हो रहा है, हमारा वर्टिब्रा मतलब फल्क्रम है, एंड इसके अराउंड हमारा जो एज अ होल पूरा जो वर्टिब्रल कॉलम है, थोरैसिक जो हमारा सेगमेंट है उसका जो काइफोटिक कर्वेचर है वो इंक्रीज करेगा अराउंड ए पर्टिकुलर फल्क्रम, तो या फिर अराउंड ए पर्टिकुलर एक्सिस. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये एक्सिस है, ये हमारा एफर्ट है जो कि हमारा लाइन ऑफ ग्रेविटी जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है जो कि हमारा काइफोटिक कर्वेचर इंक्रीज करना चाह रहा है. तो अगर हम मूवमेंट आर्म की बात करते हैं, फिर हम एफर्ट आर्म की अगर हम बात करना चाह रहे हैं, तो डोंट यू थिंक वो हमारा ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इस पर्टिकुलर वर्टिब्रा से, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ तक है ना? या फिर अगर हम इस वर्टिब्रा के ऊपर जो टॉर्क लग रहा है टू इंक्रीज द एज अ होल, जो हमारा काइफोसिस को इंक्रीज करने के लिए जो टॉर्क लग रहा है उसका जो मूवमेंट आर्म होगा फॉर दिस पर्टिकुलर वर्टिब्रा, दैट शुड बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस पर्टिकुलर वर्टिब्रा एंड दिस लाइन ऑफ ग्रेविटी. तो यहाँ पे देखो मूवमेंट आर्म कितना कम है, यहाँ पे भी मूवमेंट आर्म कितना कम है, लेकिन मूवमेंट आर्म हमें मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, ऑलमोस्ट यू कैन से एट द मिड ऑफ द थोरैसिक सेगमेंट ना, थोरैसिक सेगमेंट के ऑलमोस्ट मिड में यू कैन से ऑलमोस्ट T5, T6, T7 वर्टिब्रे जो है वहाँ पे हमें मैक्सिमम मूवमेंट आर्म मिलेगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से दैट देयर इज मैक्सिमम टॉर्क फॉर इंक्रीजिंग द थोरैसिक काइफोसिस एट द मिड सेक्शन ऑफ द थोरैसिक सेगमेंट. यहाँ तक समझ आया? Yes, sir. ठीक है, ओके. इसको सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है कि हाँ देखो यहाँ पे ना कि द line of gravity, because of that it produces a flexion movement of the thoracic spine, especially at the peak of the thoracic kyphosis. It means peak means at the mid section of the thoracic kyphosis, and because of that there is a greater movement arm of the line of gravity, which is counteracted by the posterior ligaments and the spinal extensors. Of course हमारा posterior muscles and spinal extensors जो है वो हमारे प्रिवेंट कर रहे हैं कि हमारा वर्टिबल सेगमेंट जो है, थोरैसिक सेगमेंट जो है वो इंक्रीज काइफोसिस में ना जाए. लेकिन वी कैन सी मैक्सिमम टेंडेंसी फॉर इंक्रीजिंग द काइफोसिस इज एट द मिड सेक्शन ऑफ द थोरैसिक स्पाइन. व्हाई? बिकॉज वी हैव गॉट द मैक्सिमम मूवमेंट आर्म इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन एज कम्पेयर टू अदर सेक्शंस ऑफ द थोरैसिक सेगमेंट. ओके, यहाँ तक हमें समझ आ गया. Okay, that was all with the movement of the thoracic spine. एक तो हमने vertebrae के बात करी, lateral flexion and axial rotation, and along with that we talked about this thing as well. ठीक है कि there is increased tendency at which particular section. Okay, ठीक है, आगे बढ़ूँ मैं? Yes, sir. Okay, ठीक है, great. Now coming up to the most you can say interesting part of this thing, that is the lumbar spine. So first of all, again I won't be focusing much on this because I think ये स्ट्रक्चर ज़्यादा बोरिंग हो जाता है, बिकॉज स्ट्रक्चर के बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता भी है, मैक्सिमम चीज़ें पता है वर्टिबल कॉलम का, एंड हमें फंक्शनिंग के ऊपर मेजरली आना है बिकॉज ये चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो लेकिन स्टिल यहाँ पे वी कैन टॉक अबाउट सर्टेन थिंग्स. हमें बाकी लंबर स्पाइन का हमें एज अ होल हमें पता चलेगा कि इसका मूवमेंट किस डायरेक्शन में होता है. फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो है दैट इज़ द प्रीडोमिनेंट मोशन. हमें ये पता है कि इसमें सर्वाइकल स्पाइन से कम अमाउंट ऑफ मोशन होता है, लेकिन थोरैसिक स्पाइन से ज़्यादा अमाउंट ऑफ मोशन प्रेजेंट होता है. एंड यू कैन से दैट हमारा जो लंबर वर्टिब्रे जो है वो हमारा मैक्सिमम यू कैन से लार्जर इन साइज होता है एज कम्पेयर टू थोरैसिक, बिकॉज दे हैव टू अंडरगो अ लॉट ऑफ यू कैन से फोर्स एंड मतलब वेट उनको काफ़ी बेयर करना बिकॉज ऑफ दैट ऑल वी नो. इसके अलावा there is a thing that we need to talk about is there are certain processes in the lumbar spine. Those are the mammillary process and the accessory process. Simply mammillary and accessory process है क्या, यहाँ पे है we can see
at the pars interarticularis region, or you can say between the superior and the inferior facet, between these two facets we can see there are two different processes. एक ये process है and दूसरा एक ये process है. So simply we can see this process is called as a mammillary process, and a bit lateral to that एक और process हमें मिलता है that is called as accessory process. सिर्फ नाम याद रखना है इनका, mammillary process and accessory process. Small bumps, ठीक है, located on the posterior edge of each superficial zygoepiphyseal joint, and mammillary accessory process भी हमारा कुछ ऐसे ही होता है, ठीक है. एंड सिंपली ये दोनों प्रोसेस जो होता है these are for the attachment of certain small, you can say, back extensor muscles, और you can say vertebral जो stabilizing muscles जो होती है, postural muscles जो होती है, उनके attachment के लिए they provide site of attachment, ठीक है, for you can say multifidi, for intertransverse muscles हो गए हमारी, ठीक है, and all those muscles, ठीक है, for the multifidus. So it means for the attachment of all those muscles we have got these two processes, that is the mammillary process and the accessory process. सिर्फ नाम ध्यान रखना, nothing else, because they might in the exam or somewhere else they might use these terms very frequently, ठीक है. The mammillary and जहाँ पे ये term आ रहा है just simply remember that हम lumbar spine से deal करना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, simple. Okay, now we are supposed to talk about the lumbosacral angle first of all. Okay, simply lumbosacral angle की अगर हम बात करना चाह रहे हैं, lumbosacral angle it means first of all एक तो ये angle हमारा बन रहा होगा between the lumbar spine and the sacrum, ठीक है. And the thing is that यहाँ पे सिंपली जस्ट रिमेंबर दैट लंबर स्पाइन एंड सैक्रम की अगर हमें मूवमेंट की बात करनी है, वी कैन सिंपली से दैट लंबर स्पाइन एंड सैक्रम की मूवमेंट्स फिक्स्ड होती है. मतलब वेन एवर लंबर स्पाइन गोज इनटू इंक्रीज्ड लॉर्डोसिस, इन दैट केस सैक्रम गोज इनटू न्यूटेशन. चलो मैं पहले न्यूटेशन एंड काउंटर न्यूटेशन की बात कर लेता हूँ. अगर हम नॉर्मली हमें लंबर स्पाइन की मूवमेंट पता है, हम लंबर स्पाइन में हमारे पास प्रेडोमिनेंट मोशन जो है दैट इज फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, और सिंपली आई कैन से लंबर स्पाइन का लॉर्डोसिस इंक्रीज करता है या लंबर स्पाइन का लॉर्डोसिस डिक्रीज करता है. इसके साथ में अगर हम सैक्रम की मूवमेंट की बात करना चाह रहे हैं, इन दैट केस वी कैन सी हियर दैट सैक्रम हैज़ गॉट टू डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स. सैक्रम के पास और भी मूवमेंट्स होती है, लेकिन अगर हम बायलैटरल स्टांस में सिंपल मूवमेंट्स ऑफ सैक्रम की अगर हम बात करना चाह रहे हैं, in that case we can see sacrum has got two different type of major movements, the sacral nutation and sacral counter nutation. इसको हम यहाँ पे देखते हैं पहले. Here we can see. Okay, first of all having a look at this image, can anyone tell me ये हम right side की तरफ देख रहे हैं कि person के left side की तरफ देख रहे हैं? मतलब are we having a look at the right side of the sacrum or at the left side of the sacrum? This is the right side, Right ना? side. Yeah, because this is the front part of the person, this is the back, ठीक है. ये हम lateral right side से हम person को देख रहे हैं, simple. अब हम अगर sacrum की movement की बात करना चाह रहे हैं, simply अगर हम bilateral stance में देख रहे हैं, तो in that case we can see sacrum can move in, you can say, this particular direction, that you can say अब मैं term use कर रहा हूँ counter clockwise and counter clockwise, but आप ये टर्म कहीं यूज़ मत करना, बिकॉज अगर हम इस पर्सन को राइट साइड से देख रहे हैं तो यहाँ पे मुझे ये मूवमेंट क्लॉकवाइज देखने को मिल रही है, लेकिन इस पर्सन को अगर मैं लेफ्ट साइड से देखूंगा तो उस केस में मुझे ये मूवमेंट काउंटर क्लॉकवाइज देखने को मिलेगी. तो इसलिए हम ये टर्म यूज़ नहीं करेंगे क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज, लेकिन सिंपली यहाँ समझाने के लिए मैं सिर्फ ये बोल सकता हूँ कि जहाँ पे इस सैक्रम का टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ सैक्रम को हम सैक्रल प्रमोंटरी भी बोलते हैं, ठीक है. तो व्हेन एवर द सैक्रल प्रमोंटरी, और यू कैन से द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द सैक्रम, और यू कैन से द सैक्रल बेस, इट मूव्स एंटीरियरली एंड इन्फीरियरली, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. एंड ओके, एंड और यू कैन से द एपेक्स ऑफ द सैक्रम, इट मूव्स पोस्टीरियरली एंड सुपीरियरली. Okay, sacral promontory moves anteriorly and inferiorly, and sacral apex moves posteriorly and superiorly. In that case, we will call that particular type of sacral movement as sacral nutation. This is called as sacral nutation. सबको समझ आया ये चीज़? Sacral base moves, ठीक है, in this particular direction, and apex moves posteriorly and inferiorly. एंड इसका अपोजिट जहाँ पे एपेक्स मूव्स एंटीरियरली एंड सुपीरियरली, एंड सैक्रल यू कैन से बेस और सैक्रल प्रमोंटरी मूव्स पोस्टीरियरली एंड इन्फीरियरली, इस टाइप का मूवमेंट सिंपली अपोजिट टू दिस, दैट इज कॉल्ड एज सैक्रल काउंटर न्यूटेशन. सिंपली हमें सिर्फ सैक्रम की मूवमेंट, जब भी हम न्यूटेशन एंड काउंटर
न्यूटेशन की बात करना चाह रहे हैं, इन दैट केस वी आर सपोज टू टॉक अबाउट सैक्रल न्यूटेशन एंड सैक्रल काउंटर न्यूटेशन. ये हम दो टर्म यूज करेंगे. एंड इसके अलावा यहाँ पे सिंपली वी कैन सी दैट व्हेन एवर सैक्रम मूव्स लाइक दिस, ठीक है, तो इन दैट केस दैट इज सैक्रल न्यूटेशन. इसको सिंपली अगर हम यहाँ पे भी देखें तो इट्स लाइक दिस कि दिस इज द टॉप पार्ट ऑफ द सैक्रम, दिस इज द एपेक्स ऑफ द सैक्रम, है ना. ये हम फ्रंट साइड की बात कर रहे हैं, ये हम बैक साइड की बात कर रहे हैं. तो सैक्रम की मूवमेंट जब भी इस तरह से हो रही है, और यू कैन से द टेल पार्ट ऑफ सैक्रम, और यू कैन से द एपेक्स ऑफ द सैक्रम, इट मूव्स पोस्टीरियरली, है ना, ये पोस्टीरियर पार्ट, इट मूव्स पोस्टीरियरली. और यू कैन से द टॉप पार्ट ऑफ द सैक्रम मूव्स एंटीरियरली एंड इन्फीरियरली. दैट इज कॉल्ड एज सैक्रल न्यूटेशन, है ना. एंड इसका अपोजिट मूवमेंट जो होगा दैट इज कॉल्ड एज सैक्रल काउंटर न्यूटेशन, जहाँ पे बेस the top part of the sacrum moves posteriorly and apex moves anteriorly. That is called as sacral counter nutation. यहाँ तक क्लियर है? Sacral nutation and sacral counter nutation, simple movements. ठीक है. अब यहाँ पे कैन एनीवन टेल मी कि हम कौन से एक्सिस के अराउंड देखना चाहेंगे ये सैक्रल न्यूटेशन एंड काउंटर न्यूटेशन? कौन सा एक्सिस होना चाहिए यहाँ पे? एपी एक्सिस. नहीं, एपी एक्सिस कैसे? देखो देखो सैक्रम हमारा इस तरह से, मतलब सैक्रम तो मेरा ऐसे मूव करेगा ना, दिस इज सैक्रल न्यूटेशन, दिस इज सैक्रल काउंटर न्यूटेशन. तो एक्सिस ये नहीं होना चाहिए राइट टू लेफ्ट एक्सिस, इसके अराउंड ही तो सैक्रम इस टाइप की मूवमेंट शो करेगा ना. एपी एक्सिस के तो अराउंड ये वाली मूवमेंट शो करेगा, है ना. ठीक है, फ्रंटल एक्सिस. या एग्जैक्टली, इट शुड बी द फ्रंटल एक्सिस, ना, फ्रंटल एक्सिस. इसको सिंपली आप किसी चीज़ से ना मतलब रिलेट करके देखा करो. इसमें आई डोंट थिंक एक एक्सटेंट के बाद क्या कहते हैं एक्सिस एंड प्लेन्स, इट ऑल इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप इसको कितने अच्छे से इसको आप परसीव करते हो. बिकॉज आई थिंक एक एक्सटेंट के बाद तो ये हमें खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा कि इसका एक्सिस क्या होगा, प्लेन क्या होगा. ठीक है, ओके. तो सिंपली अब यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है इट इज़ द फ्रंटल एक्सिस. ओके, सिंपली हमें समझ आ गया. एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट द सैक्रल न्यूटेशन एंड द सैक्रल काउंटर न्यूटेशन. सिंपल. अब यहाँ पे हाँ ठीक है, हम कहाँ पे थे? हम यहाँ पे थे. तो सिंपली नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट सैक्रल न्यूटेशन एंड सैक्रल काउंटर न्यूटेशन. नाउ व्हाट आई एम कंसर्न विथ कि अगर लंबर स्पाइन जो है, व्हेनेवर द लंबर स्पाइन इट गोज इनटू इंक्रीज लॉर्डोसिस, और यू कैन से लंबर स्पाइन एक्सटेंशन जब इंक्रीज करता है, in that case if I typically have a look at the L5 vertebra, don't you think कि L5 vertebra का anterior tilting बढ़नी चाहिए? L5 vertebra जो है इसका anterior part जो है that should go downwards and posterior part of L5 should go upwards. जब as a whole हमारा पूरा lumbar spine का lordosis increase करता है, या फिर you can say extension increase करता है lumbar spine का. Let me know ये समझ आया कि नहीं सबको? नहीं समझ आया? ओके, देखो आई एम जस्ट सेइंग कि ये हमारा लंबर स्पाइन है. ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ लंबर स्पाइन का लॉर्डोसिस इंक्रीज कर रहा है. लंबर स्पाइन इज गोइंग इनटू इंक्रीज लॉर्डोसिस. जस्ट सेकंड. ओके, तो इन दिस केस वी कैन सी अगर लंबर लॉर्डोसिस इंक्रीज कर रहा है, नाउ जस्ट हैव अ लुक. ये दिस इज ऑल, दिस डिपेंड्स अपॉन योर लेवल ऑफ इमेजिनेशन एंड पिक्चराइजेशन कि आप जस्ट L5 को इस पूरी इमेज को आप वीडियो में कन्वर्ट करो माइंड में, एंड जस्ट सिंपली सी कि ये लंबर स्पाइन जो है जब ये लॉर्डोसिस में जाना चाहेगा, जब इसका लॉर्डोसिस इंक्रीज करेगा, इन दैट केस L5 जो है, L5 एंटीरियर की तरफ ज़्यादा टिल्ट नहीं करेगा. L5 जो वर्टिब्रा है इसका एंटीरियर पार्ट जो है ये नीचे की तरफ मूव करेगा, एंड L5 का जो पोस्टीरियर पार्ट है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा. यस सर. आई एम नॉट श्योर स्टिल कि सबको ये चीज़ समझ आई कि नहीं. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. मैं इसको किस चीज़ से ओके ये वी कैन चलो इसको हम नॉर्मली किसी और चीज़ से, मेरे पास कुछ चीज़ ऐसे है नहीं, बट देखो हम यहाँ पे ये हम लंबर स्पाइन की बात कर रहे हैं. ठीक है, लंबर स्पाइन की बात कर रहे हैं. यहाँ पे मैं सिंपली इस कर्वेचर की बात करना चाह रहा हूँ. चलो यहाँ पे ऐसे दिखाया गया है. ठीक है, ये हमारा L5 वर्टिब्रा है. L5 वर्टिब्रा जब हम लंबर लॉर्डोसिस इंक्रीज करते हैं, डोंट यू थिंक कि L5 वर्टिब्रा हमारा इस तरफ मूव कर रहा है. दिस इज द एंटीरियर पार्ट, दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट. ये हमारा लंबर लॉर्डोसिस है. अब लंबर लॉर्डोसिस हम इंक्रीज करते हैं तो डोंट यू थिंक कि L5 वर्टिब्रा थोड़ा सा और इस तरफ मूव करेगा, एंटीरियरली मूव करेगा. यस सर. या चलो हम L5 की भी अगर हम बात नहीं करना चाह रहे,
सिंपली डोंट यू थिंक कि अगर अगर ये लंबर स्पाइन इंक्रीज लेवल ऑफ लॉर्डोसिस में जाता है, डोंट यू थिंक कि ये जो एक्सिस की हम बात करना चाह रहे हैं, ये एक्सिस थोड़ा सा ऐसे हो जाना चाहिए, कुछ ऐसा, बिकॉज वी नो कि अब हमारा लंबर स्पाइन और ज़्यादा ऑब्लिक हो चुका है, या फिर हम कह सकते हैं कि L5 वर्टिब्रा जो है वो और लेवल ऑफ ऑब्लिक्विटी में आ चुका है. सिंपली हियर वी कैन सी ना कि देखो यहाँ पे हम देख रहे थे, सिंपल ये नॉर्मल पोजीशन था, यहाँ पे हमारा L5 का ऑब्लिक्विटी कुछ ऐसे थी, लेकिन अब हमने देखा कि हमारा जो लंबर लॉर्डोसिस है वो और इंक्रीज किया, तो लॉर्डोसिस जो ऑब्लिक्विटी है वो और इंक्रीज होनी चाहिए ना, मतलब हमारा इस तरह से है, मतलब लंबर लॉर्डोसिस जब और इंक्रीज कर रहा है तो इन दैट केस ऑब्लिक्विटी जो है L5 वर्टिब्रा की वो और ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर जाएगी, वो और ज़्यादा ऑब्लिकली प्लेस हो जाएगा हमारा L5 वर्टिब्रा. उस केस में हमारा जो ऑब्लिक्विटी है या एक्सिस जो है वो और इंक्रीज हो जाना चाहिए ना, ऑब्लिक्विटी ऑफ द एक्सिस L5 के थ्रू जो मैं बात कर रहा हूँ. जस्ट लेट मी नो यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा. ये एक्सिस जो है, ये दिस शुड बिकम मोर लाइक दिस, बिकॉज इंक्रीज लॉर्डोसिस के साथ में हमारा L5 वर्टिब्रा जो है वो और ज़्यादा ऑब्लिक हो जाना चाहिए, और यू कैन से एंटीरियर पार्ट ऑफ L5 शुड कम अ बिट लोअर एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ L5 शुड गो अ बिट अपवर्ड्स, है ना. L5 और ज़्यादा ऑब्लिक हो जाएगा, तो अब हम क्या बात कर रहे हैं इस एक्सिस की, तो ये एक्सिस भी तो और ज़्यादा ऑब्लिक. अभी हम देखो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ L5 कुछ ऐसे प्रेजेंट है, इंक्रीज लॉर्डोसिस के साथ में हमारा लोअर पार्ट ऑफ L5 कुछ ऐसे नहीं हो जाएगा ना, इस तरह से. एंड उस केस में अगर हम एक्सिस की बात करेंगे पूरे एक्सिस की, तो ये एक्सिस हमारा कुछ ऐसे पास करना चाहिए, इस तरह से. एक्सिस जो है, ये एक्सिस जो है दिस इज बिटवीन द L5 एंड द S1. L5 S1 जंक्शन पे है, और यू कैन से सिंपली मूव्स, इट गोज थ्रू द L5 S1 जंक्शन और एट द लेवल ऑफ सैक्रल प्रोमोन्ट्री या टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ सैक्रम के थ्रू पास करता है ये एक्सिस. सबको ये चीज़ समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, आ रही है. ओके, तो इट मीन्स विथ सैक्रल सॉरी विथ इंक्रीज लंबर लॉर्डोसिस, अब कोई बता सकता है मेरे को कि अगर हम सैक्रल न्यूटेशन एंड काउंटर न्यूटेशन की अगर हम बात करना चाह रहे हैं विथ इंक्रीज लंबर लॉर्डोसिस, सैक्रल न्यूटेशन बढ़ना चाहिए कि सैक्रल काउंटर न्यूटेशन बढ़ना चाहिए? सैक्रम का टॉप पार्ट जो है वो इस तरफ मूव करना चाहिए, इस तरह से, या इस तरह से मूव करना चाहिए विथ इंक्रीज सैक्रल न्यूट. ठीक है, नाउ आई एम हैप्पी कि सबको ये चीज़ समझ आई फाइनली कि हाँ, कि sacral is going into nutation, sacral must go into nutation because, or you can say simply say that with increased lumbar lordosis sacral promontory should move somewhat like this, है ना. तभी तो हमारा सैक्रम जो है वो कोप अप कर पाएगा L5 या फिर एज अ होल लंबर वर्टिब्रा के साथ में, ठीक है. और यू कैन सिंपली से दैट विथ इंक्रीज लंबर लॉर्डोसिस जो एपेक्स ऑफ सैक्रम जो है इट हैज़ मूव्ड समवट लाइक दिस, है ना, पोस्टीरियरली एंड सुपीरियरली, इस तरह से मूव किया. ओके, तो इसको अगेन अगर हम इस तरह से भी अगर हम देखते तो यहाँ पे सिंपली यू कैन सी इट लाइक दिस, ये हमारा लंबर स्पाइन है और ये हमारा सैक्रम अटैच्ड है, ठीक है. ये लंबर लॉर्डोसिस है, इट मीन्स ये हम एंटीरियर पार्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पोस्टीरियर पार्ट है. ये लंबर लॉर्डोसिस है एंड ये हमारा सैक्रम इस तरह से अटैच्ड है, ठीक है. अब लंबर लॉर्डोसिस जब इंक्रीज करता है तो सैक्रम जो है इट गोज इनटू न्यूटेशन एंड क्या कहते हैं सैक्रम लंबर लॉर्डोसिस, नहीं मैंने उल्टा बोला ना, ये एंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है. एंड लंबर स्पाइन जब लॉर्डोसिस इंक्रीज करता है इन दैट केस सैक्रम जो है सैक्रम गोज इनटू न्यूटेशन, ठीक है. Top part of the sacrum moves anteriorly and inferiorly and apex of the sacrum moves posteriorly and superiorly. इस तरह का मूवमेंट होता है. और कैसे लंबर स्पाइन के साथ अगर हम बात करें तो इस टाइप का मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, इंक्रीज लंबर लॉर्डोसिस एंड इंक्रीज सैक्रल न्यूटेशन समवट लाइक दिस, ठीक है. एंड दिस इज सैक्रल काउंटर न्यूटेशन, ठीक है. इसको मत देखना, आर्म को मत देखना, सिर्फ हैंड एंड ये हैंड को देखो. दिस इज द लंबर लॉर्डोसिस. ये इंक्रीज लंबर लॉर्डोसिस हुआ एंड सैक्रम वेंट इनटू सैक्रल न्यूटेशन एंड बैक जब लॉर्डोसिस डिक्रीज किया इन दैट केस सैक्रम वेंट इनटू सैक्रल काउंटर न्यूटेशन, जहाँ पे एपेक्स अगेन हमारा एंटीरियरली एंड सुपीरियरली मूव किया एंड टॉप पार्ट ऑफ द सैक्रम जो है वो पोस्टीरियरली एंड इंफीरियरली मूव किया हमारा, ठीक है. इट मीन्स विथ इंक्रीज लंबर लॉर्डोसिस sacrum goes into sacral nutation, with decreased lumbar lordosis sacrum goes into sacral counter nutation. ये सबको समझ आ रहा है कि नहीं? यहाँ तक सब साथ में है कि नहीं?
Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इसमें इसमें ये रूल कभी चेंज नहीं होगा ऑलवेज। जब भी इसमें इसमें कोई कोई ऑप्शन ही नहीं है चेंज होने का। जब भी लंबर स्पाइन में लॉर्डोसिस में जाएगा या इंक्रीज एक्सटेंशन में जाएगा, हमेशा सैक्रम जो होगा होगा वो हमारा न्यूट्रिशन में जाएगा। जब भी लंबर स्पाइन फ्लेक्शन में जाएगा और यू कैन से डिक्रीज लॉर्डोसिस में जाएगा, उस केस में लंबर सैक्रम जो है वो काउंटर न्यूट्रिशन में जाएगा। एंड सिंपली अब तो हमें हम समझ सकते हैं यहाँ पे एंगल को, है ना, बिकॉज नाउ वी कैन सिंपली से कि हमारा लंबर स्पाइन लॉर्डोसिस अगर इंक्रीज किया, उस केस में सैक्रम जो है वो न्यूट्रिशन में गया, तो उस केस में ऑब्लिक्विटी जो है इस लाइन की वो और ज़्यादा ऑब्लिक हो गया ना। विद इंक्रीज लंबर लॉर्डोसिस लंबर स्पाइन या L5 जो है या L5S1 जंक्शन जो है वो और ज़्यादा ऑब्लिक हो गया, तो उस केस में हमारा जो एक्सिस है वो कुछ इस तरह से पास करेगा। तो व्हाट डू यू थिंक कि एंगल जो है वो क्या होना चाहिए, इंक्रीज या डिक्रीज? Increase होगा sir. इंक्रीज होना चाहिए ना। इट सिंपली मीन्स विथ you can say with lumbar lordosis with increasing lumbar lordosis, or you can say with increasing sacral nutation, the lumbar sacral angle must always increase, है ना। and with decreased lumbar lordosis, or you can say with sacrum going into counter nutation, the lumbar sacral angle is supposed to decrease। ठीक है, Yes. हमें हमें सिर्फ इस एक्सिस की बात करनी है। आई थिंक ये तो हमें सबको पता है ना कि ये एक्सिस हॉरिजॉन्टल के साथ में कहीं पे भी लगे। ये हॉरिजॉन्टल अगर मैं यहाँ बनाऊँ कोई फर्क नहीं पड़ता ना, ये लाइन कहीं भी क्रॉस करेगी तो 30 डिग्री एंगल ही बनाएगी। इवन इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ भी अगर मैं इसको अगर मैं अगर आगे लेके जाता हूँ तो अगेन यहाँ पे भी ये 30 डिग्री बनाएगी। तो हॉरिजॉन्टल से फर्क नहीं पड़ता, हॉरिजॉन्टल कहीं पे भी हो, हमें सिर्फ इस ऑब्लिक्विटी की इस लाइन की इस एक्सिस की बात करनी है। इट शुड पास थ्रू द लंबर सैक्रल एंगल, लंबर सैक्रल जंक्शन। ठीक है, normally it is 30 degree, and we can say that with increased lumbar lordosis it will go into this angle should increase, है ना। and with decreased lumbar lordosis this angle should decrease। okay, इतना हमें समझ आ गया। बट इसके साथ में देखो, अब मैंने ये चीज़ क्यों बोली कि हमेशा लंबर स्पाइन के मूवमेंट के साथ में ऑलवेज विथ लंबर लॉर्डोसिस सैक्रल न्यूट्रिशन, ऑलवेज विथ लंबर काउंटर लंबर डिक्रीज लॉर्डोसिस, और यू कैन से लंबर फ्लेक्शन के साथ में हमेशा हमारा सैक्रल काउंटर न्यूट्रिशन होता है। लेकिन हमारे इसके साथ में पेल्विस की जो मूवमेंट है, बिकॉज इवेंचुअली अब लंबर स्पाइन की मूवमेंट के बाद हमारा सैक्रम का मूवमेंट होगा, सैक्रम की मूवमेंट के बाद तो हमारा पेल्विस का ही मूवमेंट होना चाहिए ना, बिकॉज वी नो कि सैक्रम एंड इलियम आपस में अटैच्ड होते हैं ना सैक्रो इलियक जॉइंट के थ्रू। एंड देखो यहाँ पे एक सरफेस भी दिखाया हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज द ऑरिकुलर सरफेस, है ना। दिस इज द ऑरिकुलर सरफेस ऑफ सैक्रम, it must get attached to the auricular surface of ilium, है ना। तो दैट ऐसा ही जॉइंट बनता है। एंड उसके बाद तो इट मीन्स कि सैक्रम की मूवमेंट की वजह से इवेंचुअली हमारा इलियम और वी कैन से एज अ होल पूरा का पूरा पेल्विस की मूवमेंट हमारी डिपेंड करेगी, है ना। तो अब लेकिन ये चीज़ है कि पेल्विस की मूवमेंट ऑलवेज डजेंट नेसेसरली मीन कि मतलब पेल्विस की एक पर्टिकुलर टाइप की मूवमेंट हो रही है तो हमारी, मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि लंबर स्पाइन के लॉर्डोसिस के साथ में हमेशा पेल्विस को एंटीरियर टिल्ट में ही जाना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है। इट कैन गो इनटू पोस्टीरियर टिल्ट एज वेल। मैं आपको एग्जांपल दूंगा जहाँ पे वो पोस्टीरियर टिल्ट में भी जा सकता है। देखो जैसे नॉर्मली यहाँ पे बुक में अगर हम देख रहे हैं, बुक में दिखाया गया है कि हमेशा, नॉट हमेशा, बट बुक में इस तरह से दिखाया गया है कि यहाँ पे सैक्रल न्यूट्रिशन हो रहा है, सैक्रल न्यूट्रिशन हो रहा है तो इट मीन्स लंबर लॉर्डोसिस हो रहा है। एंड इसके साथ में यहाँ पे दिखाया गया है कि पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट हो रहा है, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि विद increasing sacral nutation or you can say with increasing lumbar lordosis pelvis जो है वो anterior pelvic tilt में भी जा सकता है। ठीक है, तो अभी हम उस पर आएंगे थोड़ी देर में, लेकिन अभी हम नॉर्मली सिंपल यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हाँ, सिंपली हमें इतना समझ आ गया कि पेल्विस की मूवमेंट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द मूवमेंट ऑफ, यू कैन से नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द मूवमेंट ऑफ द सैक्रम एंड द इलियम। ठीक है, ऑफ कोर्स सैक्रम एंड इलियम की मूवमेंट की वजह से हमारे पेल्विस की मूवमेंट होगी, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमेशा सेम टाइप की मूवमेंट होगी पेल्विस की। अपोजिट टाइप की मूवमेंट भी हो सकती है, दैट डिपेंड्स अपॉन सर्टेन थिंग्स, उसकी अभी हम बात करेंगे थोड़ी देर में। यहाँ तक समझ आया सबको? ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ओके, ठीक है। एंड ठीक है, ओके, ये अगेन स्ट्रक्चर्स पे हम आ गए। स्ट्रक्चर ये हम पढ़ चुके हैं, लिगामेंट्स की हम बात कर चुके हैं। ठीक है, सैक्रो इलियक एंड सैक्रो
सैक्रोस्पाइनस एंड सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, उसके अलावा हमने हमने ग्रेटर शियाटिक नॉच एंड लेसर शियाटिक नॉच की भी बात करी थी। ये सब हमें पता है, इसमें कोई इशू नहीं, ये हम एनाटमी में कवर कर चुके हैं। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं हमारे इंटरवर्टिबल डिस्क की। तो हमने हमने सर्वाइकल स्पाइन में इंटरवर्टिबल डिस्क देखा था। वहाँ पे वी सॉ कि जो जो एनलस फाइब्रोसिस था दैट वाज क्रिसेंट शेप स्ट्रक्चर ना, वो एंटीरियरली प्रेजेंट था हमारा न्यूक्लियस पल्पोसस के। पोस्टीरियरली एनलस फाइब्रोसिस नहीं प्रेजेंट था ना, पोस्टीरियरली सिंपली हमारा जो न्यूक्लियस पल्पोसस था दैट वाज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। लेकिन इन केस ऑफ लंबर स्पाइन वी कैन सी, इन केस ऑफ लंबर स्पाइन वी कैन सी, एक तो ऑफ कोर्स देयर आर हाई अमाउंट ऑफ फोर्सेस जो कि हमारा लंबर इंटरवर्टिबल डिस्क के ऊपर पड़ रहा है, इसकी वजह से इट शुड बी स्ट्रॉन्ग। तो एक तो चीज़ हम क्या देखते हैं कि लंबर इंटरवर्टिबल डिस्क में posteriorly it is biconvex in shape, biconvex in shape. Why? thoracic vertebra में अगर हम देख सकते हैं तो posteriorly it is completely convex, लेकिन posteriorly it is biconvex or you can say there is a concavity posteriorly in case of lumbar vertebrae. Why? so as to increase the surface area. surface area किसका? हमारी जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, एनुलस फाइब्रोसिस जो प्रेजेंट है, जो कि ऑफकोर्स हमारा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है इंटरवर्टिबल डिस्क को, उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करना है अगर हमें, तो इसके ऑफकोर्स यहाँ पे हम इस तरह से कनकेविटी अगर हमारे पास प्रेजेंट है या बाय कन्वेक्स शेप अगर इंटरवर्टिबल डिस्क है, तो इन दैट केस वी कैन सिंपली से दैट हमारे पास मोर अमाउंट ऑफ एनुलस फाइब्रोसिस अगर हमारे पास आ गया, तो दैट विल इवेंचुअली इंक्रीज, or you can say that will enhance the you can say the resilience of the annulus fibrosis against the forces which are being put on it, है ना? I hope सबको समझ आ रही है चीज? सर हाँ, ओके, सबको समझ आ रहा है कैसे? ओके, ग्रेट, ठीक है। तो एक तो हमें ये चीज़ समझ आ गई। इसके अलावा है व्हाट वी कैन सी, यहाँ पे एक चीज़ और लिखी गई है कि अगर हम कोलाजन हमने कोलाजन फाइबर्स की बात करी थी, कोलाजन फाइबर्स जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। कोलाजन फाइबर्स मैक्सिमम क्वांटिटी में किस में था? न्यूक्लियस पल्पोसस में, एनुलस फाइब्रोसिस में, या फिर वर्टिबल एंड प्लेट में? वर्टिबल एंड प्लेट में ना, बिकॉज वहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमें चाहिए, वो डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विथ वर्टिब्रा है, ठीक है, ओके। तो लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं वी हैव गॉट कोलाजन फाइबर्स अगेन इसमें भी, लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं, द ओरिएंटेशन ऑफ द कोलाजन फाइबर्स कुछ इस तरह से होते हैं कि दे आर एट 120 डिग्री, यू कैन से एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विथ ईच अदर। मतलब यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये आउटर लेयर जो है, आउटर लेयर ऑफ, यू कैन से दिस पर्टिकुलर लेयर ऑफ इंटरवर्टिबल डिस्क ऑफ द लंबर स्पाइन, यहाँ पे कोलाजन फाइबर्स अगर इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में है, तो सिंपली इसके नेक्स्ट लेयर में अगर हम देखेंगे तो वो एकदम इसके अपोजिट ओरिएंटेशन में, और यू कैन से अगर ये एंगल की अगर हम बात करें, ये वाला एंगल, इसको एंगल मतलब ये नीचे से आई थिंक दिखाया गया है, रिफ्लेक्स एंगल है, एंड 120 डिग्री का एंगल बनता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो यू कैन सिंपली से दैट ये 120 डिग्री का एंगल बनाएगा लाइक वाइज, तो लाइक इज दिस, मतलब इन्फीरियरली अगर हम देखते हैं सिंपली, और यू कैन सिंपली से दैट द ओरिएंटेशन ऑफ द कोलाजन फाइबर्स आर, you can say, opposite to each other in the adjacent layers of the annulus fibrosus. ऐसा क्यों होता है? So as to increase their resilience, again, so as to increase their resilience against an external force, है ना? Simply ये इसके बारे में सबको आइडिया है, बिकॉज देखो नॉर्मली अगर एक ब्रिक्स से अगर हम वॉल बनाते हैं, सिंपली मतलब वहाँ पे एक ही पैटर्न में अगर वो वॉल अगर ब्रिक्स को रखा गया है, तो देर इज़ अ हाई चांस कि उस वॉल को हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा, मे बी अगर आपने नोटिस किया हो, जब भी अगर वॉल बनाई जा रही है, तो उस केस में आप देखते हो अगर नीचे वाला ब्रिक को अगर एक पर्टिकुलर पैटर्न में रखा जाता है, तो उसके नेक्स्ट वाले ब्रिक को थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन में रखा जाएगा। आप मतलब एक को लॉन्गिट्यूडनली रखा गया, दूसरे को फिर हम दूसरी तरह से रख रहे हैं, हॉरिजॉन्टली, नॉट हॉरिजॉन्टली, मतलब दूसरे पैटर्न से रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट को हम फिर अलग पैटर्न से रखते हैं। तो अलग अलग पैटर्न से ब्रिक्स रखने का हमारा मकसद ये होता है, सो एज कि इवेंचुअली जब फोर्सेस उस वॉल के ऊपर पड़ेंगे, तो अलग अलग पैटर्न में अगर हमारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, तो उस फोर्स को, मतलब वो फोर्स को डिसिपेट करने में हेल्प करेगा ना। मतलब एक एक्सटर्नल फोर्स अगर मान लो आउटर लेयर पे आ गया इंटरवर्टिबल डिस्क के, अब इनर लेयर मान लो वहाँ पे भी फाइबर सेम ही ओरिएंटेशन में होते हैं, इस तरह से होते हैं, तो इजीली फोर्स ट्रांसमिट कर जाता है इनर यू कैन से न्यूक्लियस पर पहुंच जाता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट लेयर में फाइबर ओरिएंटेशन अपोजिट टाइप से है, अलग टाइप से है, तो यहाँ पे अब फोर्स थोड़ा काफ़ी ज़्यादा और कम हो गया यहाँ पे, है ना। तो लाइक वाइज इस वजह से हम कह सकते हैं कि एज अ होल हमारा अमाउंट ऑफ फोर्स जो पड़ रहा होता है उसको
डिसिपेट करने के लिए हमारा जो ओरिएंटेशन ऑफ कोलाजन फाइबर्स होता है वो इस तरह से होता है. लाइकवाइज हमने इस चीज़ की बात करी थी इवन क्लाविकल में भी, दैट इन क्लाविकल एज वेल, लाइक क्लाविकल का जो शेप होता है दैट इज एस इन शेप है ना, वहाँ पे भी हमारा जो फोर्सेज है, फोर्स को डिसिपेट करने के लिए कि अगर हम हर पॉइंट पे फोर्स वेक्टर अगर बनाना चाहें क्लाविकल पे, तो लैटरल मोस्ट पार्ट पे हम एक डायरेक्शन में बनाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा और मीडियली अगर हम आए तो दूसरे डायरेक्शन में फोर्स बनेगा. तो एज अ होल जब तक वो फोर्स पूरा मीडियली पहुंचेगा तब तक हम देखेंगे वो फोर्स काफ़ी ज़्यादा डिसिपेट कर चुका, काफ़ी कम हो चुका होगा. ठीक है, तो इस वजह से उसकी रेजिलियंस को इंक्रीज करने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर मैनर में हमें देखने को मिलता है कोलाजन फाइबर्स. ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर सब कुछ. इससे लिगामेंट्स हम कवर कर चुके हैं, इसको मैं दोबारा टच नहीं करता अभी. ठीक है, ओके, तो लेट्स नाउ कम अप टू दिस थिंग. ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड. ये जूम इन आउट क्यों नहीं हो रहा है? जस्ट आई डोंट नो, चलो कोई नहीं. ओके, हाँ ठीक है. अब नाउ वी आर सपोज टू टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेमेटिक्स. वी नो काइनेमेटिक्स ऑफ लंबर स्पाइन की अगर हम बात करते हैं, मैक्सिमम वी हैव गॉट फ्लेक्शन एक्सटेंशन है ना. उसके अलावा थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ लैटरल फ्लेक्शन रोटेशन मिलेगा हमें, लेकिन मैक्सिमम इट इज फ्लेक्शन एक्सटेंशन इन केस ऑफ लंबर स्पाइन. ओके, नाउ द थिंग दैट इज important that we are supposed to talk about here, it is the lumbar pelvic rhythm. लंबर पेल्विक रिदम पहले हम कवर करते हैं, उसके बाद देन वी विल जंप ओवर टू दिस थिंग जहाँ पे हम मूवमेंट्स की बात करेंगे इसकी, सैक्रम की एंड हमारे पेल्विस की. ओके, सबसे पहले अगर हम लंबर पेल्विक रिदम की अगर हम बात करते हैं, ऐसे ही एक रिदम हमें एक और देखने को मिलता है ना अपर लिम्ब में, अपर स्कैप्रो, हाँ स्कैप्रो ह्यूमरल रिदम. मतलब वहाँ पे भी अगर हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट सैक्रम एक पर्टिकुलर टाइप की मूवमेंट शो करता है, उसके बाद उसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारा आर्म की जो मूवमेंट है एज अ होल वो इंक्रीज कर जाती है, या फिर वो मूवमेंट हमें देखने को मिलती है. तो इसका लाइकवाइज यहाँ पे भी हम इसकी बात कर सकते हैं. यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लंबर पेल्विक रिदम की जब हम बात कर रहे हैं उस टाइम पे फर्स्ट ऑफ ऑल द पर्सन शुड बी इन द बायलैटरल स्टांस and the person is coming either in forward bending position, या फिर person वापस bend position से वापस erect position में जा रहे हैं. अब सिंपली यहाँ पे हम सबसे पहले किसकी बात करें, पहले हम बेंडिंग पोजीशन की बात करते हैं. पर्सन इज ट्राइंग टू बेंड फॉरवर्ड. तो इस केस में सिंपली हम अगर यहाँ पे लिवर की बात करना चाहें सबसे पहले, तो लिवर हम किस तरह से देख सकते हैं. एक हमारा अगर एज अ होल ये पर्सन अगर फॉरवर्ड बेंड कर रहा है, तो उस केस में कोई बताना चाहेगा कि एक्सिस कौन सा होगा, मतलब फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए. तो डोंट यू थिंक कि एक्सिस हमारा कहीं यहाँ प्रेजेंट होगा. ये पेल्विस जो है, ये पेल्विस हमारा एक्सिस हो सकता है, जिस एक्सिस के अराउंड ये पर्सन एज अ होल इरेक्ट पोस्चर से हमारा फॉरवर्ड बेंड पोस्चर में आया है. इस एक्सिस के अराउंड होगा ना, या फिर ये फलक्रम होगा हमारा. फलक्रम या एक्सिस एक ही बात है कि नहीं? यस सर. ठीक है, एंड उसके बाद हम देख सकते हैं वी हैव गॉट सम लंबर back extensors which are trying to keep the back in मतलब which are in contracted state, and then we can see कि हमारा जो हेड जो है, हेड का ऊपर उसके ऊपर हम डाउनवर्ड डायरेक्टेड फोर्स लगा सकते हैं, सो डैट एज अ होल हमारा जो लोड है वो हमारा कहीं यहाँ पड़ रहा है. इट मीन्स अगर मैं लोड आर्म की बात अगर मैं करता हूँ, तो कैन वी से दैट हमारा एक्सिस से लेके ऑलमोस्ट अप टू द लेवल ऑफ हेड ये हमारा लोड आर्म होगा, एंड लोड विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. एंड अगर मैं एफर्ट आर्म की बात करता हूँ, तो डोंट यू थिंक एफर्ट आर्म कहीं यहाँ पे हमारा यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरफ बनना चाहिए, बिकॉज हमारी बैक मसल जो है वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन में है, एंड इस केस में द बैक मसल्स आर ट्राइंग टू स्टेबलाइज दिस पर्टिकुलर पर्सन है ना. एंड तो इस केस में मैं बोल सकता हूँ कि हमारे बैक एक्सटेंसर्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन में, तो ये हमारा एफर्ट हो गया. तो इट मीन्स हमारा एफर्ट आर्म अगेन फलक्रम से लेके ऑलमोस्ट अप टू दिस पर्टिकुलर लेवल हमारा एफर्ट आर्म हो गया. दिस इज द एफर्ट, दिस इज द लोड, एंड दिस इज द एक्सिस. कैन एनीवन टेल मी ये कौन सा क्लास लेवर बनेगा हमारा? यहाँ पे एफर्ट है, बैक एक्सटेंसर्स, ये हमारा फलक्रम है, एंड ये हमारा लोड है यहाँ पे. दैट इज थर्ड ऑर्डर ना, थर्ड क्लास है, थर्ड ऑर्डर लिवर ना.
ओके, थर्ड ऑर्डर लीवर, हम थर्ड ऑर्डर में क्यों डालते हैं उसको? थर्ड ऑर्डर मीन सबसे सबसे बेकार वाला जो कोच होता है ट्रेन में, वो थर्ड क्लास, सेकंड क्लास उससे बेटर होता है, फर्स्ट क्लास उससे बेटर होता है। तो थर्ड जो है वो सबसे बेकार वाला है। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास लोड आर्म जो है वो ज़्यादा है एंड एफर्ट आर्म बहुत कम है, तो यहाँ पे बड़ा मुश्किल होगा ना ये टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए, तभी हम इसको हमने थर्ड वाले में डाला हुआ है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे क्या देखना चाह रहे हैं कि दिस इज द फल्क्रम, दिस इज द लोड अपवर्ड्स एंड दिस इज द एफर्ट अपवर्ड्स एंड दिस इज द लोड डाउनवर्ड्स। सिंपल। अब हम सिंपली किसी भी की बात कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सन कमिंग इनटू इनटू बेंड पोजीशन, फॉरवर्ड बेंडिंग पोजीशन में जब पर्सन आ रहा है। तो इस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सन अपने इरेक्ट पोजीशन में है। इरेक्ट पोजीशन से पर्सन जब फॉरवर्ड बेंड पोजीशन में आता है, अब हमारे पास दो ऑप्शंस है, या तो पहले हमारा लंबर स्पाइन फ्लेक्शन में जाए, या फिर हमारा एज अ होल पेल्विस जो है वो एंटीरियर टिल्ट में जाए। ठीक है, या फिर हमारा एक तो या तो हमारा लंबर स्पाइन पहले फ्लेक्शन में जाएगा, या फिर हमारा पेल्विस जो है वो पहले एंटीरियर टिल्ट में जाएगा। ठीक है, तो पहले दोनों सिनेरियो को देखते हैं। पहले लेट्स से अगर हमारा लंबर स्पाइन अगर पहले फ्लेक्शन में नहीं जाता, लेट्स से लंबर स्पाइन हमारा इरेक्ट पोस्चर में ही है एंड पहले हमारा पेल्विस अगर एंटीरियर टिल्ट में जाना चाह रहा है ड्यूरिंग फॉरवर्ड बेंडिंग पोजीशन, तो इस केस में हमारा, डोंट यू थिंक कि जब ये पर्सन इस पोजीशन में इस पोस्चर तक आएगा, इसका हेड यहाँ पे है एंड बिकॉज ऑफ लंबर लॉर्डोसिस जो कि इरेक्ट मतलब लंबर लॉर्डोटिक पोस्चर में है, उस केस में डोंट यू थिंक इस पर्सन का हेड जो है वो कहीं यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए? अगेन मैं इस चीज़ को समझाता हूँ। हाँ, ठीक है, देखो हम जब पर्सन जब इरेक्ट पोस्चर में था, उस केस में तो हमें पता है नॉर्मल हमारा जो लंबर स्पाइन था वो हमारा इरेक्ट पोजीशन में लंबर लॉर्डोटिक पोस्चर में था। अब हम जब फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं उस टाइम पे हम देखते हैं कि सबसे पहले लंबर फ्लेक्शन में जाता है, उसके बाद हमारा पेल्विस जो है वो एंटीरियर टिल्ट में जाता है। क्यों? ताकि लंबर फ्लेक्शन पहले हुआ, तब हम जब फॉरवर्ड बेंडिंग में है तो हमारा हेड कहीं यहाँ पे रहा। सोचो हमारा लंबर अगर फ्लेक्शन में नहीं गया होता, तो उस केस में लंबर स्पाइन इरेक्ट होता एंड उस केस में हेड जो यहाँ पे है वो कहीं यहाँ पे होता, कहीं यहाँ प्रेजेंट होता, बिकॉज हमारा जो वर्टिबल कॉलम है वो इरेक्ट है, या फिर हम कह सकते हैं हमारा लंबर स्पाइन जो है वो इरेक्ट है। तो उस केस में हमारा हेड जो कि हमें यहाँ पे थैंकफुली देखने को मिल रहा है, वो कहीं यहाँ पे प्रेजेंट होता ना, अगर हमारा लंबर स्पाइन इरेक्ट पोजीशन में होता। ठीक है, और उस केस में हमारा लोड आर्म जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता। तो सोचो कितना मुश्किल हो जाता है ये चीज़ आप खुद से ट्राई कर सकते हो। आप जस्ट एक बार लंबर स्पाइन को इरेक्ट रख के आप फॉरवर्ड बेंडिंग करके देखो, आप देखो एक एक्सटेंड के बाद आप खुद आगे की तरफ गिरना शुरू कर दोगे, बिकॉज हमारे पास लोड आर्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो बिकॉज ऑफ दैट अब थैंकफुली हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये मैकेनिज्म है जहाँ पे हम नंबर पेल्विक रिदम हमारे पास प्रेजेंट है, जहाँ पे हम पहले देखते हैं कि लंबर स्पाइन जो है वो फ्लेक्शन में जाता है ड्यूरिंग फॉरवर्ड बेंडिंग। ठीक है, एक बार ये पर्सन सफिशिएंट लेवल ऑफ रेंज ऑफ मोशन फॉर फॉरवर्ड बेंडिंग अटेन कर चुका है, जहाँ पे इसका लंबर स्पाइन सफिशिएंटली फ्लेक्स हो चुका है। ठीक है, एंड हम लोड आर्म जो है उसको जितना कम हो सकता था उतना हम कम कर चुके हैं। आफ्टर दैट नाउ वी कैन सी इन ऑर्डर टू कंप्लीट द रेंज ऑफ मोशन फॉर फॉरवर्ड बेंडिंग, अब हमारा पेल्विस जो है वो एंटीरियर टिल्ट में जाएगा। अब हम ये पर्सन जो है वो अपना फॉरवर्ड बेंडिंग जो है वो कंप्लीट कर पाएगा। सेम सिनेरियो को अगर हम यहाँ पे अगर हम देखते हैं ड्यूरिंग कमिंग बैक, ठीक है, अब ये पर्सन वापस ऊपर की तरफ आना चाह रहा है। इस केस में हम क्या देखना चाहेंगे? अब ये मैं आपसे पूछता हूँ, अगर ये पर्सन वापस इरेक्ट पोस्चर में आना चाह रहा है, तो हमारे पास दो सिनेरियो है, या तो पहले लंबर स्पाइन एक्सटेंशन में जाए, या पहले पेल्विस पोस्टीरियर टिल्ट में जाए। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए पहले? लेट्स से अगर ये लंबर स्पाइन अगर पहले एक्सटेंशन में जाता है, तो अगेन हम गलती कर देंगे ना, हम वही वाली गलती कर देंगे कि अगर लंबर स्पाइन एक्सटेंशन में गया पहले, तो उस केस में हेड जो है वो कहीं यहाँ ऊपर आते आते कहीं यहाँ पे आ जाएगा, बिकॉज एज अ होल हमारा वर्टिबल कॉलम की लेंथ जो है वो इंक्रीज करेगी विद इंक्रीजिंग लंबर लॉर्डोसिस, हेड कहीं यहाँ प्रेजेंट होगा एंड पर्सन के लिए जो लोड आर्म है वो कितना ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए इट्स बेटर कि हम लंबर स्पाइन को फ्लेक्स ही रखते हैं। अभी पहले हम पेल्विस को पोस्टीरियर टिल्ट में लेके जाते हैं। पोस्टीरियर टिल्ट में हम लेके गए पेल्विस को, ये पर्सन सफिशेंटली ऊपर की तरफ आया, कहीं यहाँ तक पहुँच गया। अब हम देख रहे हैं कि हाँ, अब हमारा जो लोड आर्म है एक्सिस से
अप टू द लोड है ना, हेड हमारा कहीं यहाँ पे प्रेजेंट है, लोड आर्म काफ़ी कम हो चुका है, मूवमेंट आर्म काफ़ी कम हो चुका है, अब हम लंबर स्पाइन को एक्सटेंशन में लेके आते हैं सो डैट हम कंप्लीट इरेक्ट पोस्चर में आ जाएंगे वापस, ठीक है। तो इट्स अ बेटर आइडिया टू ब्रिंग द pelvis into posterior tilt first and then bringing the lumbar spine into a lordotic posture while coming back. And forward bending के टाइम पे it's better to first bring the lumbar spine into flexion and then eventually हम अपने pelvis को forward bending में ला सकते हैं, ठीक है। and ये रिदम या फिर ये मैकेनिज्म जो फॉलो होता है दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज लंबर पेल्विक रिदम। सबको चीज समझ आई रीजन इसका? यस सर। यस सर। ठीक है, इवेंचुअली हम अपना लोड आर्म या मूवमेंट आर्म जो है वो हम कम रखना चाह रहे हैं, बस उस वजह से हम ये चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। जो भी है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द फॉरवर्ड बेंडिंग कंसिस्ट ऑफ लंबर सैक्रल फ्लेक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी लंबर सैक्रल फ्लेक्शन और यू कैन से लंबर फ्लेक्शन, देन दैट एक बार सफिशिएंटली ये पर्सन नीचे आ चुका है, उसके बाद नाउ वी कैन से फॉरवर्ड एंटीरियर फॉरवर्ड फॉलोड बाय एंटीरियर टिल्ट ऑफ द पेल्विस एट द हिप जॉइंट, सिंपल, ठीक है। एंड बैकवर्ड कमिंग while coming backward, in that case first of all there will be posterior tilt of the pelvis and then there will be lumbar lordosis that will increase, ठीक है। ओके, इतना हमें समझ आ गया एंड दैट इज बेसिकली द लंबर पेल्विक रिदम। इसको मैं एक चीज़ से कंपेयर करके देखता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे हम देख रहे हैं सैक्रल न्यूटेशन एंड पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट। सैक्रल न्यूटेशन कब होगा? जब लंबर स्पाइन में क्या होगा? लंबर स्पाइन में फ्लेक्शन होगा या लंबर स्पाइन में एक्सटेंशन होगा? लंबर स्पाइन का लॉर्डोसिस इंक्रीज करेगा कि लंबर स्पाइन का लॉर्डोसिस डिक्रीज करेगा? किस केस में लंबर सैक्रल इंक्रीज करेगा ना? लंबर स्पाइन का लॉर्डोसिस जब और इंक्रीज करेगा उस केस में हमारा सैक्रम जो था इट मस्ट गो इनटू सैक्रल न्यूटेशन, सिंपल। एंड यहाँ पे इस इमेज में लिखा हुआ है कि सैक्रल न्यूटेशन के साथ में देयर इज पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे इस केस में देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं वाइल कमिंग बैक, नहीं एक सेकेंड, नहीं चलो ठीक है, इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ थोड़ी देर बाद। जो मैं अभी बात करना चाह रहा हूँ इसको मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करता हूँ, 2 मिनट बाद। लेकिन अभी यहाँ तक सबको समझ आया? यहाँ तक सबको क्लियर है ये चीज़? लंबर पेल्विक रिदम सबको क्लियर हुआ? ओके, ठीक है, सिंपल। अब हम अगेन स्ट्रक्चर ऑफ सैक्रम, दिस थिंग वी नो, जस्ट कीप इन माइंड कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, सिंपली आई थिंक फर्स्ट थर्ड सैक्रल वर्टिब्रे जो है, 3 सैक्रल सेगमेंट जो है विच आर इन कॉन्टैक्ट विद द इलियम मेकिंग द एसआई जॉइंट, एंड हमारा ऑरिकुलर सरफेस है ना ऑफ द सैक्रम एज वेल एज द इलियम, ठीक है, जो कि कॉन्टैक्ट में होता है। 5 सैक्रल वर्टिब्रे है हमारे पास, 8 sacral foramen और 4 पेयर ऑफ sacral foramen हमारे पास प्रेजेंट है। एंड वी हैव गॉट हाइलैंड कार्टिलेज। हाइलैंड कार्टिलेज सिंपली जो भी आर्टिकुलेटिंग सरफेस होता है वहाँ पे हमारे पास हाइलैंड कार्टिलेज प्रेजेंट होगा, सिंपली दिस थिंग वी नो। अगेन आई वोंट गो इनटू लिगामेंट्स। लिगामेंट्स की अगर हमें बात करनी है, इलियो लंबर लिगामेंट, देखो सैक्रोस्पाइनस सैक्रोटिकुलस हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हम इलियो लंबर लिगामेंट्स की अगर हम बात करते हैं, इसके 3 बैंड होते हैं। 3 बैंड कौन कौन से होते हैं हमारे पास एक वेंट्रल बैंड होता है, ठीक है, एक वेंट्रल बैंड ऑफ इलियो लंबर लिगामेंट, एक डॉर्सल बैंड ऑफ इलियो लंबर लिगामेंट एंड एक सैक्रल बैंड ऑफ इलियो लंबर लिगामेंट। ये हम बात कर रहे हैं लिगामेंट्स बिटवीन इलियम एंड लंबर वर्टिब्रा। लंबर वर्टिब्रा भी कौन सा? 5th लंबर वर्टिब्रा, L5। तो वी हैव गॉट L5 एंड इलियम के बीच में हमारे पास 3 बैंड्स है। वी हैव गॉट 3 बैंड्स ऑफ लिगामेंट्स, the ventral and the dorsal iliolumbar ligaments and the sacral band of up to sacrum, ठीक है, sacral band of iliolumbar ligament, ठीक है। इसके अलावा sacrospinous sacrotuberous we know। ओके, मैं आगे बढ़ूँ? अभी मैं इस पे आना चाह रहा हूँ, ये लास्ट चीज़ है, ये मैं कवर करना चाहता हूँ आज के दिन में। यहाँ तक कवर कर लेंगे इसको, ठीक है। ओके, जस्ट लेट मी नो यहाँ तक कोई इशू किसी को, यहाँ तक कोई इशू कोई हो? यहाँ तक सब क्लियर? ओके, ग्रेट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट थिंग, बिकॉज ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है, दैट्स व्हाई आई वांट टू कवर दिस कलेक्टिवली। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसको हम डिस्कस कर भी चुके हैं। हम यहाँ पे अगेन वी आर सपोज टू टॉक अबाउट द मूवमेंट्स ऑफ द पेल्विस एंड मूवमेंट्स ऑफ द सैक्रम। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम पेल्विस की मूवमेंट की बात करते हैं, or you can say motions occur at the SI,
सॉरी, तो वी कैन सी है कि हमारा अगर हम सैक्रम की मूवमेंट की बात करते हैं या फिर पेल्विस की मूवमेंट की अगर हम बात करना चाह रहे हैं, तो इट कैन आइदर बी सिमेट्रिकल, इट कैन बी एसिमेट्रिकल। देखो इस केस में जहाँ पे पर्सन बायलैटरल स्टांस में फॉरवर्ड बेंड कर रहा था, यहाँ पे हमारे पास राइट इनॉमिनेट बोन है एंड लेफ्ट इनॉमिनेट बोन है, दोनों एक साथ मूव करेगी इनटू फॉरवर्ड बेंडिंग, इनटू एंटीरियर पेल्विक टिल्ट, जहाँ पे ये पर्सन फॉरवर्ड बेंड करेगा। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे पेल्विस की सिमेट्रिकल मूवमेंट हो रही है कि एसिमेट्रिकल मूवमेंट हो रही है? सिमेट्रिकल मूवमेंट हो रही है। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हमारी होती है उसमें हम सिमेट्रिकल एक्टिविटीज़ करते हैं पेल्विस की, एसिमेट्रिकल करते हैं? वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, या फिर हम एसिमेट्रिकल मूवमेंट्स करते हैं ना। मतलब जब भी हम वॉक कर रहे होंगे, ऑफ कोर्स दोनों दोनों लेग को एक साथ तो मूव करेंगे नहीं, एक लेग एक टाइम पे मूव करेगा। तो इन दैट केस वी विल सी कि राइट वाला, लेट्स से हमने राइट फुट आगे प्लेस किया, तो इन दैट केस लेट्स से राइट वाला इनॉमिनेट बोन जो है, आई होप एवरीवन इज क्लियर विद द टर्म इनॉमिनेट बोन, राइट साइड का इलियम प्यूबिसिशियम जो है ना, वो अगर पोस्टीरियरली टिल्ट किया है ना, तो मतलब हमने राइट फुट को आगे रखा, तो राइट साइड का जो इनॉमिनेट बोन है वो पोस्टीरियर टिल्ट में गया विथ रिस्पेक्ट टू लेफ्ट वाला। तो उस पर अभी हम आते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास एसिमेट्रिकल मूवमेंट भी हो सकता है, हमारे पास सिमेट्रिकल मूवमेंट भी हो सकता है। ओके, अब अभी हम सिमेट्रिकल मूवमेंट्स की बात करना चाहेंगे, उसके बाद हम एक बार एसिमेट्रिकल मूवमेंट थोड़ा बहुत देख लेंगे। एंड न्यूट्रिशन काउंटर न्यूट्रिशन, आई थिंक वी आर क्लियर विद द टर्म्स, है ना, न्यूट्रिशन एंड काउंटर न्यूट्रिशन, यहाँ इसमें को हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम बात करते हैं एंटीरियर पेल्विक टिल्ट एंड पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट की। सिंपली एंड जहाँ पे एज अ होल हमारा पेल्विस जो है वो एंटीरियर टिल्ट कर रहा है, लाइक इन दिस पर्टिकुलर केस, है ना। और सिंपली यू कैन से दैट ASIS प्यूबिक सिम्फाइसिस, और यू कैन से एंटीरियर पार्ट जो है, एंटीरियर स्ट्रक्चर्स जो है ऑफ द पेल्विस मूव्स inferiorly and anteriorly inferiorly, that is called as anterior pelvic tilt, and इसका opposite जो movement होगा इस टाइप का, that is called as posterior pelvic tilt. Okay, now the thing is, अब हमें कंपेयर करना है दोनों, मतलब कोरिलेशन देखना है बिटवीन द मूवमेंट्स ऑफ द लंबर स्पाइन एंड द सैक्रम एंड द पेल्विस एज अ होल। ओके, इसको समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिस्कस थिंग हियर। हाँ, ये मैंने ओपन करके रखा था, ये चीज़, ये आप लोगों ने ये डायग्राम देखा? आई थिंक ये मैगी में है डायग्राम। किसी ने देखा है ये डायग्राम कभी? जहाँ पे मेजरली बेसिकली दे हैव टॉक्ड अबाउट द मूवमेंट ऑफ द पेल्विस बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्टेन सेट ऑफ मसल्स। सिंपली हियर वी कैन सी, जैसे हम इस केस में देख रहे हैं, देयर इज एंटीरियर पेल्विक टिल्ट, एंड इस केस में वी कैन सी देयर इज पोस्टीरियर टिल्टिंग ऑफ द पेल्विस। तो anterior tilting of the pelvis is majorly caused because of contraction of the erector spinae posteriorly and iliocostalis, or you can say hip flexors, iliopsoas, hip flexors anteriorly, iliopsoas group of muscles anteriorly, hip flexors anteriorly, and back extensors posteriorly, or you can say erector spinae posteriorly. A combined contraction of these two muscles eventually lead to anterior tilting of the pelvis, and on the contrary, a combined contraction of the gluteal and the hams muscles and the rectus abdominis, the abdominal muscles. इनका जब combined contraction होता है, that eventually provides posterior tilting of the pelvis. यहाँ तक clear हुआ कि नहीं? This is because of the attachment of the muscles in a particular manner, that if these set of muscles contract, in that case there is anterior tilting of the pelvis, and अगर if this set of muscles contract, there is a posterior tilting of the pelvis. यहाँ तक clear है? Yes, sir. ठीक है, ये मैं इमेज ग्रुप पे भी सेंड कर दूंगा। ओके, अब हम बात करना चाह रहे हैं, अब नाउ सिंपली अगर हमें ये चीज़ समझ आ गया, तो नाउ सिंपली वी कैन अंडरस्टैंड कि किस टाइप से पेल्विस मूव करता होगा एक पट। लेट्स से अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम बायलैटरल स्टांस में फॉरवर्ड बेंडिंग की बात करें, बिकॉज हम वो देख चुके हैं, तो इसी की हम पहले बात कर लेते हैं। इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में वी कैन सी, कैन एनीवन टेल मी कि हमारा कौन सा सेट ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जब पर्सन फॉरवर्ड बेंड कर रहा है? उस केस में कौन सा सेट ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा? मतलब अगर हम लेट्स से अगर हम यहाँ पे देखते, डोंट यू मतलब आई डोंट थिंक कि यहाँ पे एब्डोमिनल्स किसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा अगर ये पर्सन फॉरवर्ड बेंड में जा रहा है। एब्डोमिनल्स तो कॉन्ट्रैक्शन में नहीं होगा ना, यहाँ पे हमारा लंबर, हाँ, बैक एक्सटेंसर्स जो है,
है ना. तो इट मीन्स अगर हम बैक एक्सटेंसर्स की बात करें, मतलब इरेक्टर स्पाइनी ग्रुप ऑफ मसल्स एंड इसके साथ में हम कह सकते हैं कि हमारा इलियोसवास भी हमारा कॉन्ट्रैक्शन में, तो इट मीन्स हमारा ये सेट ऑफ मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्शन में है तो सॉरी, तो इस केस में हमारा एज अ होल जो पेल्विस है इट मस्ट गो इनटू एंटीरियर टिल्टिंग. तभी हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में जब पर्सन फॉरवर्ड बेंड करता है तो इस केस में एज अ होल द पेल्विस गोज इनटू एंटीरियर टिल्ट. लेकिन अब हम दूसरे सिनेरियो की बात कर लेते हैं. लेकिन अब देखो, अब यहाँ पे अगर मैं ऐसा होल पूरा अगर मैं कंपेयर करूँ तो वी कैन सी विथ फॉरवर्ड बेंडिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल लंबर स्पाइन किस में जा रहा है? इज इट गोइंग इनटू फ्लेक्शन और इज इट गोइंग इनटू एक्सटेंशन? लंबर स्पाइन इन फॉरवर्ड बेंडिंग फ्लेक्शन. it is going into flexion. Now since the lumbar spine is going into flexion, तो sacrum का कौन सा movement हो रहा है? Is it sacral nutation or sacral counter nutation? सैक्रल. counter sacral counter nutation ना. क्या कहते हैं, lumbar spine flexion and sacral counter nutation. ठीक है, ये ध्यान रखना, sacral counter nutation with lumbar flexion and lumbar extension के साथ में sacral nutation. ओके, अब तो लंबर फ्लेक्शन एंड सैक्रल काउंटर नोटेशन, एंड उसके साथ में हमें देखने को मिला विद फॉरवर्ड बेंडिंग देयर इज एंटीरियर टिल्टिंग ऑफ द पेल्विस इन केस ऑफ फॉरवर्ड बेंडिंग. ओके, नाउ लेट्स से ये पर्सन जो है ये सुपाइन लेंथ पोजीशन, क्रंचेस वाले पोजीशन में आ गया. क्रंचेस मीन्स जो हम एब्स के लिए जो करते हैं ना, क्रंचेस. ओके, तो मतलब द पर्सन इज इन, यू कैन से सुपाइन लेंथ, मोर और लेस सुपाइन लेंथ पोजीशन, एंड उसके बाद नाउ द पर्सन इज ट्राइंग. तो उस केस में जब पर्सन क्रंचेस वाली पोजीशन में आता है एंड व्हेन द पर्सन परफॉर्म्स द एक्सरसाइज, तो उस केस में लंबर स्पाइन अगेन फ्लेक्शन में जाएगा, है ना. लंबर स्पाइन अगेन फ्लेक्शन में जाएगा. लेकिन नाउ व्हाट वी कैन सी, कहाँ गया, नहीं यहाँ, ओके यहाँ पे ना, हाँ. नाउ व्हाट वी कैन सी, जब पर्सन मतलब सुपाइन लाइंग पोजीशन में जब पर्सन ट्रंक बेंड करता है अगेंस्ट ग्रेविटी, उस केस में डोंट यू थिंक कि हमारा ये सेट ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा जहाँ पे हमारी एब्डोमिनल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है. नाउ सिंस एब्डोमिनल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो इन दैट केस पेल्विस मस्ट गो इनटू अ पोस्टीरियर टिल्ट. दिस थिंग यू कैन इवन ट्राई इट बाय योरसेल्फ, कि एक बार जस्ट मे बी क्लास के बाद में जस्ट गो इनटू दिस सुपाइन लाइंग पोजीशन. ठीक है, नी को फ्लेक्स कर देना थोड़ा इजी हो जाएगा, एंड देन जस्ट ट्राई टू लिफ्ट योर दिस थिंग ट्रंक, है ना, अगेंस्ट ग्रेविटी. एंड पैल्पेट कैसे करोगे? राइट एंड लेफ्ट दोनों हैंड्स को ना राइट एंड लेफ्ट इनॉमिनेट बोन्स के ऊपर प्लेस करना, मतलब राइट एंड लेफ्ट इलियम के ऊपर प्लेस करना. एंड आई वुड सजेस्ट कि आइज क्लोज करके एक बार जस्ट ट्राई टू फिगर आउट, एक बार हैंड की मूवमेंट देखना. आप जब फॉरवर्ड जब आप ट्रंक बेंड कर रहे होगे अगेंस्ट ग्रेविटी, जस्ट ट्राई टू फील द मूवमेंट ऑफ द इलियम, है ना, कि वो किस टाइप की मूवमेंट में जा रहा है. इज इट गोइंग इनटू एंटीरियर टिल्ट और इज इट गोइंग इनटू पोस्टीरियर टिल्ट? ठीक है, तो नाउ वी कैन सिंपली सी दैट इन व्हेन द पर्सन कम्स इनटू ट्रंक बेंडिंग पोजीशन, व्हेन द पर्सन वाज इनटू सुपाइन लाइंग पोजीशन, इन दैट केस हमारी एब्डोमिनल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, एंड नाउ वी कैन से दैट द पेल्विस वेंट इनटू पोस्टीरियर टिल्ट. Now can anyone tell me कि when the person is in prone lying position, या फिर we can say when the person is trying to perform prone cobra exercise, है ना, where the person tries to lift the trunk against gravity. ओके, उस केस में हमारा कौन सा सेट ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए? आई डोंट थिंक कि अगेन यहाँ पे एब्डोमिनल्स तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए ना. व्हेन द पर्सन इज इन प्रोन लाइंग पोजीशन, उस केस में हमारी बैक एक्सटेंसर्स का कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए. एंड उस केस में हमारा अगेन जो पेल्विस है, व्हेन द पर्सन इज इन प्रोन लाइंग पोजीशन एंड व्हेन द पर्सन ट्राइज टू लिफ्ट द ट्रंक अगेंस्ट ग्रेविटी, इवन दो लंबर स्पाइन इज कमिंग इनटू इंक्रीज लॉर्डोसिस, है ना, एंड द सैक्रम इज गोइंग इनटू न्यूटेशन, but now the pelvis is going into anterior pelvic tilt because now this set of muscles are under contraction. That's why. Just let me know सबको ये चीज़ समझ आई कि नहीं आई? Yes sir. Yes sir. Okay. जो चीज़ मैंने यहाँ पे बताई ये सब इसमें लिखा नहीं हुआ, इसमें सिर्फ सिंपली इसके बारे में बात की गई है बुक में मूवमेंट की, बट कंबाइंड मूवमेंट्स हमें तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हमेशा सैक्रल न्यूटेशन के साथ में हमेशा पोस्टीरियर टिल्ट नहीं होगा ना. सैक्रल न्यूटेशन मीन्स लंबर स्पाइन गोइंग इनटू फ्लेक्शन. लेकिन हमने ये देखा कि व्हेन द पर्सन वाज इन द सुपाइन लाइंग पोजीशन, उस केस में हम लंबर स्पाइन फ्लेक्शन में ला रहे थे, सैक्रम वाज गोइंग इनटू न्यूटेशन, बट पेल्विस का तो हमारा दूसरा टिल्ट हो रहा था ना. कौन सा? नहीं, इस केस में हमने देखा था जब यहाँ पे पर्सन बायलैटरल स्टांस में था,
इस केस में पर्सन का पेल्विस का पॉस्टीरियर टिल्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे लंबर स्पाइन जो था वो तो एक्सटेंशन में जा रहा था, एंड सैक्रम जो था वो तो हमारा न्यूट्रेशन में जा रहा था। लेकिन यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे ये दिखाया गया है कि हमारा सैक्रल न्यूट्रेशन के साथ में कहाँ पे है, मतलब जो भी है, मतलब सैक्रल न्यूट्रेशन के साथ में हमारा पेल्विस जो है वो इसमें जा रहा है। तो इट मीन्स कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमारा सैक्रम का मूवमेंट एंड मतलब लंबो सैक्रल का मूवमेंट एंड साथ में पेल्विस का मूवमेंट कंबाइंड होगा। इट कैन वेरी, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द पर्सन, लेकिन लंबर स्पाइन का मूवमेंट एंड सैक्रम का मूवमेंट हमेशा सेम होगा। ऑलवेज विथ लंबर एक्सटेंशन there will be sacral nutation, always with lumbar flexion there will be sacral counter nutation, but the movement of the pelvis is under question, and we can talk about that depending upon the position of the person कि person किस position में है, उसके according easily we can say कि कौन सा टाइप का pelvic motion हमें देखने को मिल सकता है जब person कौन से position में है। सबको ये चीज़ समझ आई कि नहीं आई? यस सर। ठीक है, ओके, इसको एक बार आप ट्राई करना खुद से इन मोमेंट्स को, सो दैट आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए ये मूवमेंट्स को समझना, ठीक है। उसके बाद में सिंपली पेल्विक टॉर्जन हम टर्म सिंपली कब यूज़ करते हैं, व्हेन देयर इज एसिमेट्रिकल मूवमेंट, है ना, जब हम जैसे वॉकिंग कर रहे हैं, वॉकिंग के टाइम पे, रनिंग के टाइम पे, उस टाइम पे हम देखते हैं कि लेट्स से अगर हम राइट लेग को अगर हम आगे लिफ्ट मतलब राइट फुट को अगर हम आगे प्लेस करते हैं, तो इन दैट केस वी विल सी कि राइट इनॉमिनेट बोन जो है वो एक पर्टिकुलर टाइप की मूवमेंट में जाती है, वो दैट इज much more, you can say we can go into much more detail of that, but अभी के टाइम पे आई थिंक दिस मच इज सफिशिएंट, बट सिंपली वी कैन से कि एक पर्टिकुलर टाइप की मूवमेंट होगी हमारी राइट इनॉमिनेट बोन की एज कम्पेयर टू लेफ्ट वन, एंड उस केस में हम देखेंगे देयर विल बी अपोजिट मूवमेंट ऑफ बोथ द पेल्विस, एंड दैट इज कॉल्ड एज पेल्विक टॉर्जन, एसिमेट्रिकल मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड एज पेल्विक टॉर्जन, है ना। And simply again there is one more thing that just remember the name of this thing, that is RSA, or we can say Roentgen stereo photogrammetric analysis, ठीक है। ये बेसिकली एक we can talk about this that it helps to figure out the amount or to measure the amount of movement at the SI joint. Can anyone tell me कितना degree of range of motion होता होगा हमारे SI joint पे, SI joint पे कितना degrees of range of motion होता होगा? Does anyone have any idea about this? It is almost maximum to maximum 2 degrees or 3 degree at max, not more than that, ठीक है, just 2 or 3 degree, वो भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। तो it means there is a very minute amount of motion, and just see कि इतने minute movement हमारे SI joint पे होता है, उसकी वजह से कितना ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है पेल्विस के मूवमेंट में, एंड इवेंचुअली हमारा पूरा का पूरा बॉडी चेन में। तो लेकिन रेंज ऑफ मोशन ऑलमोस्ट ग्लाइडिंग मूवमेंट होगी एसआई जॉइंट पे, ऑलमोस्ट बाय 2 और 3 डिग्रीज मैक्सिमम वी कैन सी इसका मूवमेंट होता है, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। एंड वी कैन यूज द RSA एनालिसिस सो एज टू फिगर आउट टू मेजर द अमाउंट ऑफ रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। बट आई एम जस्ट कंसर्न विद दिस थिंग दैट is this clear to everyone, the movement of the sacrum in relation to the lumbar spine, and how the pelvis moves in different position when it go like whether it is supposed to go into anterior or into posterior tail depending upon the position of the person, है ना। and इसके अलावा हमारा lumbar pelvic rhythm, and उसके अलावा हमारा lumbar and sacrum का movement कि lumbo sacral angle की जो हमने बात करी थी, ये सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, ओके, ग्रेट, ठीक है, ओके, देन लेट्स वाइंड इट अप टिल हियर, एंड वाज इट हेल्पफुल, वाज इट एंजॉयबल, ठीक था? यस सर। इतना डीप एनालिसिस किसने किया है कभी, मतलब किसी ने गो थ्रू किया हो या किसी को आइडिया हो? नहीं कह रहे, मतलब दिस इज अनफॉर्चुनेट ना कि हमारे कॉलेज में ये सब चीज़ें की बात नहीं की, एंड ये सब नॉर्कन्स का है, अभी मैं नॉर्कन से बाहर आया ही नहीं हूँ, तो दिस इज़ नेसेसरी। एंड प्रॉब्लम क्या, देखो होता क्या है कि व्हेन वी टॉक अबाउट दिस यूनिवर्सिटीज़ ना, जो जैसे मतलब जामिया हो गया या फिर यहाँ पे इन यूनिवर्सिटीज़ में स्टिल दे टीच दीज थिंग्स टू द स्टूडेंट्स, है ना, बैचलर्स में ही। अब बिकॉज ऑफ दैट नाउ दे आर एबल टू फिगर आउट कि ये सब चीज़ें क्या है, दे आर एबल टू क्रैक देयर उन यूनिवर्सिटीज़ के जो MPT एग्जाम्स होते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू अदर स्टूडेंट्स जो कि जिन्होंने मे बी नहीं मतलब गो थ्रू किया होगा इस टॉपिक से, तो उनके लिए इट बिकम्स डिफिकल्ट बिकॉज क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दीज टॉपिक्स, एंड दैट्स वाई। तो नाउ आई वुड सजेस्ट कि एक बार इससे एटलीस्ट एक बार गो थ्रू करना है जो ये जो स्लाइड है, एंड जस्ट
स्लाइड को रीड करने से बेटर है जस्ट ट्राई टू फिगर आउट, आप आज के दिन में जस्ट ट्राई टू फिगर आउट योर मूवमेंट्स कि आप फॉरवर्ड बेंड कर रहे हो, बैकवर्ड बेंड कर रहे हो, उस टाइम पे पेल्विस कौन से टाइप के मूवमेंट में जा रहा है, सुपाइन लाइन में हो एंड उसके बाद ट्रंक बेंड कर रहे हो या फिर ट्रंक को लिफ्ट कर रहे हो अगेंस्ट ग्रेविटी, तब पेल्विस कौन से मूवमेंट में जाता है, इज इट गोइंग इनटू एंटीरियर टिल्ट और इज इट गोइंग इनटू पोस्टीरियर टिल्ट। तो इस तरह से जस्ट ट्राई टू फिगर आउट एंड उसके बाद इट विल बिकम ईजियर फॉर यू। ठीक है, okay, Thank you. okay then, thank you everyone, so let's wind it up। Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, great।